नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से मैं श्रुति नागपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की आज यहाँ उपस्थिति के लिए हम सब आपके आभारी हैं। पिछले 10 दिन से 4 मार्च 2024 से नई दिल्ली समेत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 9 क्षेत्रीय केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी और संस्कृत में काव्य गोष्ठी, अलग अलग विषयों पर परिचर्चा, फिल्म स्क्रीनिंग सहित अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम मीडिया सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका थीम है सिनेमा में नारी, विमेन इन सिनेमा। आज का ये कार्यक्रम एक प्रयास है सिनेमा जगत में भागीदारी रखने वाली महिलाओं के कार्यपटल को एक संवेदनशील दृष्टि से देखने और समझने का। Women in Cinema is an event conceived and executed by Media Center of the Indira Gandhi National Center for the Arts to celebrate the global narratives that women are carving through Indian cinema, both on screen and behind the lens. We all have witnessed that in Hindi cinema, women have played a wide spectrum of roles ranging from the perfect submissive woman trope to the damsel in distress, to mere objects in the film, to lately gaining power in portraying the strong, fierce and independent woman. But what also extensively impacted these characters were the different eras that these films were made in. Be it in the film or on set, the representation of women grew with time to reach the rather acceptable stage it has today. With some rebellious directors that pushed their boundaries to some determined actresses who refused to accept less than what they deserved, they have changed the definition of being a Bollywood heroine. Even though there's a long road ahead, the roller coaster set of events and films that took place to make women essential and not simply additional to Bollywood is an exciting chapter in itself, something that Team Media Center decided to decode through today's event. Today we have curated 4 sections in event. This has been made possible because of the immense contribution of our member secretary, Dr. Sachidanand Joshi sir, who has given tremendous support and guidance in maintaining, curating and discussing the cinema archives housed at IGNCA through our B.D. Garga collection and Sri Ram Tamarkar collection. First and foremost, Team Media Center with his guidance has curated an exhibition of film posters from its archives. And here I would also want to mention the profound contribution of Shri Iqbal Rizvi, our cinema associate at IGNCA Media Center, for sharing his personal collection to be a part of today's curation. Just outside this auditorium in the foyer area, our esteemed dignitaries have inaugurated this exhibition and it will remain on display for film enthusiasts. समय के साथ समाज में नारी की छवि बदलती रही है और यही बदलाव नज़र आता रहा है सिनेमा के पर्दे पर भी। ये प्रदर्शनी सिनेमा में नारी की बदलती छवि को समर्पित है। ज़रूरी नहीं कि इस प्रदर्शनी में सिनेमा में छलकती नारी की छवि के हर बदलाव को स्थान मिल पाया हो, लेकिन मोटे तौर पर फिल्मों के करीब 110 साल के इतिहास में स्ट्रॉन्ग वुमेन की छवि की एक झलक तो देखी जा सकती है। I would request all of you to please spend some time after today's event and engage with the posters on display that reflect strong female characters represented in Bollywood cinema. Alongside the exhibition, Media Center has also put up a stall of DVDs from its collection of intangible cultural heritage in the form of documentary films produced and commissioned by IGNCA over the decades. Some national award-winning films can also be found there. And on display are some rare magazines with iconic film actresses on their cover pages. This includes Filmfare from 1956 to Madhuri from 1979, Film India from 1940 to Filmfare of 1995. I'm sure you don't want to miss on accessing these gems from the personal collection of Shri Iqbal Rizvi. Publication unit of IGNCA with its young, enthusiastic and forthcoming team has also put up a stall of books on cinema that have been published by IGNCA. Here you may want to grab a copy of the first ever encyclopedia on Hindi cinema published in Hindi.
This also includes our books on Gandhi और Cine Sansar, Poster बोलते हैं, among others. Another very important feature of today's event, Women in Cinema, is a special edition of IGNCA's newsletter, Vihangama, on the same theme. To detail more about Vihangama, what went in conceiving and executing this special edition, I now request Madhavendra Kumar, Content Executive from Media Center, to please come up towards the podium and share. Good afternoon to honorable dignitaries and the esteemed guests. I stand before you to present an overview about Vihangama, Women in Cinema Special Edition. Vihangama is in-house bi-monthly publication which presents to the world the work we do in the field of art, culture, and literature. The conceptualization of this special issue of Vihangama was done with an aim to showcase women's changing portrayal in cinema. From cover design to back cover, the publication covers the aspects of women contribution to the world of cinema. Indian cinema has reflected societal shifts over the years, inviting us to delve into evolving canvas and discuss its changing dynamics. As we launch this special edition of Vihangama, Women in Cinema, we celebrate the transforming portrayal of women in films, both on screen and behind the lens. The edition would provide a platform for experts, filmmakers, scholars, and enthusiasts to explore the evolution of female characters, the challenges faced by women in the industry, and the changing landscape of gender dynamics in Indian cinema. Through insightful dialogue analysis, this special edition of the magazine will also address the ongoing journey towards gender equality and empowerment within the film industry. This special edition features contributions from esteemed individuals such as Rekha Sarma, Chairperson, National Commission for Women, Dev Prakash Chaudhary, Senior Art and Film Critique, Anurag Punetha, Controller, Media Center, IGNCA, Bobby Singh, Author and Film Critique, Dr. Shruti Nagpal, Deputy Controller, Media Center, IGNCA. Additionally, it includes insights from Sri Ashish Kaul, filmmaker, Sri Atul Gangwar, Sri Iqbal Rijvi, Sri Rajiv Ranjan, myself, Daya Sadhu, Vasudha Chatterjee, and Sefali Chaturvedi. The articles within this special edition delve deep into evolving canvas of cinema, meticulously dissecting its changing dynamics. The edition serves as an invaluable opportunity to assess the trajectory of change and explore the transition from perception to perspective. I express my heartfelt gratitude to the Editor-in-Chief, Dr. Sachidanand Joshi sir, for his unwavering support and guidance throughout this endeavor. Special thanks to Dr. Priyanka Mishra ma'am, and particularly Anurag sir for his belief in our capabilities to accomplish this feat. I like to thank the contributors and extend my special thanks to Iqbal Rijvi sir for his support. I extend appreciation to Wafa Hassan, Piyush, and Vasudha from Publication Division for their invaluable assistance in printing and making the magazine accessible to us. Lastly, I'm thankful to the designer Mani Sankarji and entire team at Media Center for their contribution. At last but not the least, I would like to thank Deepak Bhardwaj for making incessant calls in making this thing possible for us. Thank you so much. Thank you, Madhavendra. This edition of Vihangama is a collectible edition with articles on various facets of women in cinema and some rare posters of the iconic films that portrayed female characters. For anyone in the audience who wants to grab an e-copy of the Vihangama on women in cinema, please drop an email on igncavihangama@gmail.com. We will send you a copy. I repeat the email ID, igncavihangama@gmail.com. Now it gives me immense pleasure to welcome our esteemed panelists for today. We have with us Jayanti Ranganathan ji. She's an author and podcaster. She has published 16 books in the last 3 decades and is currently the executive editor of Hindustan. Jayanti ji is a renowned journalist and an author who is writing for new mediums like storytelling and podcast. Welcome to IGNCA, ma'am. We also have with us Reela Hota ji, who is an Odissi dance performer, educator and producer, and who has several performances to her credit. She is credited for adding a new dimension to Odissi dance, the spiritual aspect.
She diversified her range of productions by fusing Odissi with several other classical dance forms of India, namely Manipuri, Kathak, Bharatnatyam, and Chhau, to create a fusion production based on the poetry of great Nobel laureate Rabindranath Tagore ji. Welcome to IGNCA, ma'am. Due to some unavoidable reasons, Arnab Banerjee ji could not join us today. Now we welcome Rashmi Malik ma'am to IGNCA, who is currently the chairperson of Spic Mackey Foundation. With a robust skill set that includes management, public speaking, strategic planning, marketing, and much more, Rashmi ji contributes valuable insights to the industry. From IGNCA, among the panelists will be Shri Iqbal Rizvi, who is an author, film critique, and an avid collector of film posters, booklets, and related artifacts. The discussion will be moderated by Shri Anurag Punetha, Controller Media Center of IGNCA. But before I guest the dignitaries on stage, I would request our technical team to screen an edited short film that encompasses various facets of women in cinema. The film has been edited by including iconic dialogues of Bombay cinema and shaping the narrative that builds the context for today's panel discussion. I want to mention here the special contribution of our video editors, Vineet Singh and Tushar Gola, for curating this ensemble film. आपकी सोच, आपका डर, आपकी ये पार्टी और आपकी नकली मर्दानगी आप लोगों को मुबारक हो। जय हिंद सर। I now request our esteemed panelists to kindly launch the special edition of Vihangama, Women in Cinema. Thank you, everyone. I request Member Secretary Sir to please come and deliver his address. Sir. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो सिंपोजियम आज हम लोग आपके बीच लेकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक कोशिश है। जिन सवालों को हम लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ कहीं हमें मिल जाए। सिनेमा में महिलाओं की क्या जगह है, इस पर लगातार बहस होती है, लेकिन हम लोग किसी सकारात्मक उत्तर पे नहीं पहुँचते। हर बार ये भी सोचने को मिलता है कि दरअसल सिनेमा में महिलाएं क्या एक शोपीस की तरह इस्तेमाल होती हैं या महिलाएं भीड़ खींचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसे कई सवाल हैं। अब इन दिनों जिस तरह का हमारे समाज में परिवेश है, जहाँ पर हम लोग लगातार डिजिटल मीडियम के माध्यम से बहुत सारा ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सब सिनेमा ही हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया रील्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमको क्लिपिंग्स देखने को मिलते हैं। इन सब में भी जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता है या महिलाओं की स्थिति के बारे में कभी कभी हमें प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर सोच हमारे अंदर आ जाता है कि क्या ये सच में यही है जो कुछ समाज देखना चाहता है, या कुछ लोग हैं जो बहुत निश्चित साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हमें दिखाकर हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। क्योंकि अगर फिल्म को हिट होना है तो फिल्म को हिट होने के लिए सिर्फ नारी की देह दिखाना या नारी की देह के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना कहीं ज़रूरी नहीं है। अभी एक फ़िल्म आई थी जिस 12th फेल, और मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं भी किसी भी अतिरंजना से नारी को दिखाया गया था। वो पूरा का पूरा किरदार और पूरी फिल्म एक बहुत अलग से विषय में थी, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की बराबर महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। इसके बावजूद भी हमने नहीं देखा कि कहीं हमने नारी के शरीर को अनावश्यक रूप से कहीं आपको दिखाने की कोशिश की गई हो। इसी तरह से सिर्फ शरीर ही नहीं है, जो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं आपको आंदोलित करती हैं बातें, या कहीं ना कहीं जो आपको संकेत रूप में आंदोलित करती हैं, वो सारी चीज़ें भी कैसे हमारे समाज में जो जुगुप्सा पैदा करती हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं अंतर्विरोध पैदा करती हैं, इसको सोचने समझने की आवश्यकता है। और ये भी देखना है कि ये सब चीज़ें जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देखकर कैसे उसके बारे में रिएक्ट करती है। आज बहुत खुशी है कि काफ़ी युवा साथी इस सभागार में उपस्थित हैं,
और वे सब सोचने समझने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे और सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यही वो कंटेंट है जो दरअसल हम देखना चाहते हैं, या यही वो कंटेंट है जो दरअसल समाज में दूर तक जाएगा। इसमें सिर्फ देह की भी बात नहीं है। जिस तरह के विषय कई बार हमारे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं, OTT पर आ जाते हैं। एक किसी साहित्य समारोह में OTT पर गालियों के प्रयोग पर बहुत सारी चर्चा हुई, और इतनी लंबी चर्चा हुई कि लोगों को लगा कि शायद ये सत्र पूरा गालियों पर ही है। लेकिन जो आम बोलचाल में हम घर में कहीं जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, या एक पर्दा, एक सौजन्य का पर्दा घर में भी बोलचाल में रखते हैं, उन सारे पर्दों को, बंधनों को तोड़ते हुए वो भाषा ही व्याभिचार करती है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई शारीरिक व्याभिचार हो रहा है, सिर्फ भाषा के व्याभिचार से भी आप कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। और ये सब बातें बहुत धड़ल्ले से हमारे अपने घरों में आती चली जा रही हैं, क्योंकि अब सिनेमा देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 1000-2000 का टिकट खरीदें और सिनेमा थिएटर में जाएं। आपके घर में 24 घंटे अलग अलग माध्यमों से वो सिनेमा कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है। और उसको देख के जो सबसे बड़ी चिंता है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत मध्यम वर्ग से भी नीचे, निम्न वर्ग के लोग जिस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर खुद अपना बनाकर डाल रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैंने एक बार और भी शायद इस विषय को कहीं उठाया था। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग उसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस तरह का कंटेंट बनाने की चाह आ गई है, अपने आप को जिस तरह से पूरी तरह से एक्सपोज करने की, या तो फिज़िकली एक्सपोज करने की या इमोशनली एक्सपोज करने की, उस चाह ने ऐसा कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पर भर दिया है जो एक तरह का सामाजिक व्याभिचार है। उसके बारे में भी हम सबको कहीं ना कहीं चिंतित होने की ज़रूरत है। तो ये सारे प्रश्न लेकर आज हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। मीडिया सेंटर के साथियों ने इसे बहुत अच्छी तरह से क्यूरेट किया है, और जयंती जी तो स्वयं लगातार फिल्मों पर लिखती भी रही हैं, और उनकी बहुत प्रखर लेखनी है जिसको हम सब ने अलग अलग माध्यमों में पढ़ा है। रश्मि मलिक हम जानते हैं कि वैसे संस्कृति को लेकर बहुत शिद्दत से काम करती हैं, स्पीक मैके के साथ भी करती हैं, उसके अलावा भी करती हैं, और सिनेमा को देखने की उनकी एक अलग दृष्टि है। रीला होता जी वैसे शास्त्रीय नृत्यांगना है, लेकिन एक एजुकेटर की तरह वो अपने आप को देखती हैं, और कैसे नृत्य के माध्यम से एक नया आविष्कार आपके व्यक्तित्व का होता है, उसको समझने की कोशिश करती हैं। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों की विदुषियाँ इसीलिए यहाँ आपके बीच हैं कि वो अपने अपने ढंग से, अपने दृष्टिकोण से सिनेमा को और सिनेमा में स्त्रियों की स्थिति को कैसे देखती हैं, वो आपके सामने बताएंगी। निश्चित तौर पर हमारे साथी इकबाल रिजवी जी तो लगातार सिनेमा पर लिखते रहे हैं। मीडिया सेंटर ने कई नायाब किताबें इस दौरान निकाली हैं। अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर उनको देखिए कि हमने अलग अलग विषय उसमें लिए हैं सिनेमा को लेकर। तो ये मीडिया सेंटर का ये प्रयास है। आप सब यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। I now hand over the microphone to Shri Anurag Punetha, our today's moderator, to begin the round of conversations. Sir. धन्यवाद श्रुति, और धन्यवाद मेंबर सेक्रेटरी सर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। पैनलिस्ट का आभार कि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करी, और आप सभी का आभार। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे लिए और अपने लिए एक बार ताली बजाएं कि आपने इस विषय को चुना और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सिनेमा को लेकर ये एक छोटा सा शब्द है जिसको लेकर अलग अलग लोगों की व्याख्याएं होती हैं, लेकिन सिनेमा होता क्या है, सिनेमा के अपने अपने मायने क्या हैं। महज 100 साल पहले आई ये कला इतनी ज़्यादा सशक्त तौर पर हमारे दिलो दिमाग में पिछले 100 सालों में छाई कि इससे पहले के जितने भी इंटरटेनमेंट के माध्यम रहे हैं, नाटक हैं, कला के अन्य क्षेत्र के जो भी चीज़ें रही हैं, उसको लगभग सिनेमा ने पीछे छोड़ा है। और हम कह सकते हैं कि सिनेमा सिर्फ एक फिल्म आई है जो कि दिखाई जाती है, उसका नाम नहीं है। मेरी जनरेशन या मेरी जनरेशन से पहले के लोग मान सकते हैं, और ये दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस बात से सहमत होंगे कि सिनेमा का मतलब बचपन, सिनेमा का मतलब दोस्ती, दोस्तों के साथ बिताए गए वो पल, सिनेमा का मतलब नॉस्टैल्जिया, सिनेमा का मतलब वो डायलॉग जो कि आपने सुने थे बचपन में, वो आपके जहन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। सिनेमा का मतलब वो किरदार, सिनेमा का मतलब संभवतः वो कहानी के उतार चढ़ाव जो कि आपको याद रह जाते हैं। आप ज़िंदगी के
जिस भी पायदान पर खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कोई भी ना कभी क्षण में आप वो चीज़ों को याद करते हैं। सिनेमा आज है, इसने कितने बदलाव पिछले 75, 80 या 100 सालों में देकर, और ख़ासकर मूक फिल्मों की आज़ादी के बाद हम बात करेंगे तो इसने एक बड़ा बदलाव दिया। और अब बात आती है कि सिनेमा और भारत या पूरी दुनिया की आधी आबादी महिलाओं का किरदार किस तरह से रहा है। जब ये विषय चुना गया तो उसमें यह था कि क्या हम उन फिल्मों को लें और ये मानकर चलें, जो सवाल हमारे जहन में खड़े हुए, जैसा कि आपने सुना अभी कि हमारी टीम ने इस पर पूरा मंथन किया कि मदर इंडिया की बात हो, बंदनी की बात हो, आंधी की बात हो, 70-80 के दशक में आई वो फिल्में जिसमें प्रतिघात एक फिल्म थी, उसके बाद बैंडिट क्वीन है, 90 के दशक में आई दामिनी एक फिल्म थी, 2000 में एक पिंक फिल्म आई थी, या फिर पिछले कुछ सालों में कुछ फिल्म आई हैं, थप्पड़ जैसी फिल्म है। इन फिल्मों ने वो किरदार पैदा किए जो कि हमारे जहन में आज भी हैं, जिनकी झलक आपने इन फिल्मों में देखी है। क्या इनके किरदार निभाने से वाकई में सिनेमा मजबूत हुआ? क्या इनके किरदार निभाने से महिलाएं मजबूत हुईं? रील से रियल पर आने की जो कोशिश संभवतः फिल्म मेकर की होती है वो पूरी तरह से प्रतिलक्षित हुई कि नहीं हुई? ये तमाम सवाल हमारे जहन में थे, और इसी को लेकर हमने सोचा कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पर इनवाइट करें जिनके साथ हम न सिर्फ मंच साझा करेंगे, उनके विचार जानेंगे और संभवतः एक कंक्लूजन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जब यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि ये कहीं टीवी का डिस्कशन तो नहीं है जिसमें कि कुछ लड़ाई होगी। मैंने कहा नहीं, हम आपसे आपके क्षेत्र में डोमेन में काम करने वाले तमाम लोग हैं, तो लिहाजा आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं जयंती जी शुरुआत आपसे करूंगा। क्या वाकई में हम ये कह सकते हैं, और इस पर आपका क्या है कि टेक ऑन क्या है, कि क्या सशक्त किरदार निभाने से महिलाएं वाकई में मजबूत हुई हैं? पिछले 75 साल अगर हम खासकर देखें उसमें विमेन इन सिनेमा के इन किरदारों को, खासकर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को आप किस अंदाज में देखती हैं? अनुराग जी, जैसे आपने अपनी शुरुआत में कहा फिल्म मतलब क्या, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। फिल्म मतलब ज़िंदगी। मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, फिल्म मतलब ज़िंदगी, क्योंकि मुझे लगता है कि भिलाई जैसे छोटे शहर में जहाँ मैं पली पैदा बड़ी हुई, वहाँ पे मनोरंजन के नाम पे हमारे पास और कुछ भी नहीं था। और कुछ मैं कहूँ कि मेरे अप्पा और अम्मा की फितरत कि भिलाई के आसपास जितने थिएटर में जो भी फिल्में लगती थी वो हम बच्चों को दिखाने ले जाते थे, और हम सब के लिए वो शनिवार का दिन मतलब एक तरह से उत्सव का दिन हुआ करता था। अब मैं बात कर रही हूँ 70 के दशक की, और 70 के दशक, लेट 70 के दशक की 10-1 साल के बाद जितनी फिल्में मैंने देखी वो मुझे याद हैं, बल्कि मैं कहूँ पुरानी फिल्मों के गाने भी शुरू होते हैं तो याद रहते हैं बिल्कुल। तो हाँ, आपकी बात का जवाब है बिल्कुल। फिल्मों में हम जो किरदार देखते हैं, अब मैं चूँकि बच्ची थी उस वक्त, तो मुझे तो फिल्मी किरदारों ने बहुत अच्छे से गढ़ा है। चलिए पीछे मुड़ते हैं, 75 सालों की बात करते हैं। 70 के दशक से पहले जितनी फिल्में बनी, मदर इंडिया हो गई, बंदनी हो गई, सुजाता हो गई, मज़े की बहुत, आशा पारेख की भी फिल्में हो गई, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखी हमने। बहुत मज़ा भी आता था भाई। मैं तो टिपिकल फिल्मी हूँ, नाच गाने वाली फिल्में बहुत पसंद है मुझे। लेकिन गढ़ने का काम सच में मैं कहूँ तो 70 के दशक के बाद जब मैंने बड़े पर्दे पे देखना शुरू किया, और वो जो पहली फिल्म मेरे दिमाग में आ रही है वो है काला पत्थर। 10 साल की रही होंगी, लेकिन पहली बार किसी फिल्म में मैंने देखा कि तीनों जो महिला किरदार हैं वो तीनों करियर प्रधान है भाई। जिसे राखी है वो एक डॉक्टर है, परवीन बॉबी जो है वो एक मीडिया भाई पत्रकार है, हाँ, और नीतू सिंह जो है वो भी एक डांसर है, नाच गा के चूड़ी बेच के कमाती है वो। बिल्कुल उस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा मेरे पर, मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बार जैसे जहन में एक बात आई कि हाँ, मीडिया में भी कोई एक किरदार हो सकता है। वो लिखती है, हेलीकॉप्टर में बैठ के आती है, और वो फिर पूरा का पूरा एक ऐसा एक जर्नलिज्म का काम कर रही है कि खुलासा वाला कर रही है। बिल्कुल अपने पिताजी के दोस्त के अगेंस्ट जाती है, पूरे वो कोयला खदान के लोगों के साथ रुक के काम करती। मैं बता नहीं सकती कि उस फिल्म ने कैसा जादुई मेरे दिमाग पे काम किया था। फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म थी यश चोपड़ा की, लेकिन फिल्म के जो महानायक थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, बावजूद उनके होने के मुझे उनकी महिला किरदारों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मुझे लगता है कि वहाँ से मेरे अंदर कुछ एक लौ सी, एक चमक सी मेरे अंदर पैदा हुई कि फिल्म आप
आपके लिए सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं करते, आपका हाथ बढ़ा के आपको रोशनी की तरफ ले जाते हैं। आप कितना कुछ उनसे सीख सकते हैं, आप कितना कुछ अपने आप को गढ़ सकते हैं। आज की बात मैं करूं तो हमारे पास आज इन्फ्लुएंसर है कदम कदम पे, हम नहीं चाहते तब भी इन्फ्लुएंसर आपके सर पे हावी हो जाते हैं। सोशल मीडिया है, टीवी है, तमाम तरह के चैनल्स हैं। तब की बात करें, हमारे पास कुछ नहीं होता था, कुछ अखबारें होती थीं, पत्रिकाएं होती थीं और फिल्में होती थीं जो इतना बड़ा काम करती थी, हमें सिखाती थी कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है। और वहाँ से मैं अगर चलूँ तो मैं कहूँगी कि कुछ फिल्में देखते हुए, कुछ किरदारों को देखते हुए और 80 और 90 के दशक की कुछ फिल्मों को देखते हुए ये भी लगा कि ये सारी फिल्में और ये सारे किरदार हम महिलाओं को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है, ये गाना गाने वाली महिला हो या ऐसे किरदार हो, ये किस जमाने की बात कर रहे हैं भाई? हम बहुत आ चुके थे 80 और 90 के दशक में। तो मुझे लगता है कि वो एक दशक बहुत ख़राब रहा है और शायद इसकी वजह ये भी रही है कि उस दौर में हमने फिल्मों को बहुत महत्व नहीं दिया। वो एंग्री यंग मैन और वो ढिशुम ढिशुम और फार्मूला मुंबईया फिल्में इतनी हावी हो गई कि हमने इन सब प्रश्नों का जवाब देना छोड़ दिया। और मैं ये कहूँगी कि जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे सिनेमा भी उस समय का आईना होती है। बिल्कुल, सिनेमा भी एक सच है, सिनेमा भी एक वर्तमान को एक तरह से पूरा एक वर्तमान को एक तरह से पूरा आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल, तो वो वक्त ही ऐसा था, हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला था, एक वर्ग जो है बुरी तरह से कुचला जा रहा था। तो फिर शनई शनई जो है लहीम शहीम कदखाटी वाला एक एंग्री यंग मैन आ गया और सारे महिला किरदारों को खा गया। तो उस दौर के बाद निकल के मैं आऊँगी तो 2000 के बाद मैं कहूँगी कि एक सुखद परिवर्तन आया। महिला किरदारों में बुनियादी एक फ़र्क देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अब वो हमारी जैसी हो रही हैं, सच के करीब हो रही हैं। मतलब मैं शायद 30 साल पहले जब मैंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा था और फिल्में देखती थी और बहुत हताश होकर लौटती थी कि अरे इसका क्या रिव्यू लिखूं। 15 मिनट का भी रोल नहीं है हीरोइन का, 5 मिनट रोती है, 5 मिनट गाना गाती है, 5 मिनट हीरो को रिझाती है। ये क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं? क्या हम ऐसी औरतें हैं? खींच उठती थी मन में कि क्या दिमाग में चल रहा है इनके। फिर जब आप घुस के मिलते थे प्रोड्यूसर से, निर्देशक से, तब आपको पता चलता था हीरोइन का ये रोल तो गढ़ते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है। ये इनकी कहानी सिर्फ हीरो बेस्ड, नायक प्रधान हुआ करती थी। वो कहते थे अच्छा जी चलो आप जयप्रदा को ले लो, मीनाक्षी शेषाद्री को ले लो, हालांकि दामिनी में बहुत अच्छा काम किया, कुछ अच्छी फिल्में भी की है, बट वो पूरी एक लहर की बात कर रही हूँ मैं। तो वो जो है एक बहुत ख़राब दौर था। और आज ये जो दौर आया है उसमें मैं कहना चाहूँगी एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका बदलते हुए परिदृश्य की है। एक तो फिल्में जो हैं वो माफिया के चंगुल से निकल गई हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच गई हैं जो बड़े आराम से अपनी सोच को फिल्म में ढाल रहे हैं। अब महिलाओं के मन में ये कोई भी सवाल नहीं है कि फिल्मों में काम करना अच्छा होता है या बुरा होता है। पहले लेखक सिर्फ पुरुष होते थे, कवि सिर्फ पुरुष होते थे, लिरिसिस्ट, निर्देशक एक आध को छोड़ दें सिर्फ पुरुष होते थे। पर अब ये जो बदलाव आया है तो इस वजह से जो बहुत सारी लड़कियां फिल्मों में आ रही हैं, लिख रही हैं, काम कर रही हैं और बिना किसी डर के, बिना किसी शोषण के, और आप इसे सही कहें या गलत, ये मंच उठाने मतलब इस वक्त उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए मुझे पता नहीं, पर ये सच था कि 70 के दशक तक जो महिला हीरोइन का रोल करना चाहती थी या फिल्म में कोई भी काम करना चाहती थी उसे तमाम तरह के शोषण से गुजरना पड़ता था। और ये एक ऐसा सच है जिसपे हम हमेशा जो है कालिक डाल के रखते हैं। पर आज स्थितियां बदल गई हैं। चूंकि स्थितियां बदल गई हैं तो इसीलिए आप देखिए आज ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं जो हमें लगेगा कि हमारे आसपास की किरदार है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, पर मुझे लगता है और भी लोग होंगे जो जवाब दें। मेरा अगला सवाल रश्मि जी आपसे है कि आपका नज़रिया इस बारे में क्या है? हम खासकर जो इस पूरे पड़ाव को देखते हैं,
ये पूरी जर्नी, इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखती हैं? मतलब अगर 75 साल की बात किया जाए, वुमेन इन सिनेमा का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो कितने इम्पैक्टफुल रहे आपकी नज़र से, और जो बदलाव आप देखती हैं वो किस दिशा में? थैंक यू अनुराग जी। मैं तो पहले आपको और IGNC को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप ऐसे रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को लोगों के सामने ला रहे हैं। मेरा नज़रिया थोड़े अलग है। मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा पे विमेन हैव रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं म्यूज़िक की तरफ से बोल रही हूँ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंडियन म्यूज़िक म्यूजिशियंस हैव, उनकी गानों की इज़ बीन वेरी इंटीग्रल टू सक्सेस ऑफ a film or a movie, whether it is Hindi movie or a Bangla movie or Malayalam movie for that matter, any movie। मुझे लगता है कि पिछले 70-75 साल से हमारे क्लासिकल म्यूजिशंस जो उनका जो गायन रहा, नृत्य रहा, क्योंकि आप देखिए रोशन कुमारी जी डांस करती थी, उसके बाद सितारा देवी कितने साल तक डांस है और लोगों ने बहुत सराहा उनको। उसके बाद आप देखिए बेगम अख्तर ने एक्टिंग भी करी और गाई भी। आप ये किशोरी अमोनकर जैसी इतनी बड़ी दिग्गज स्टॉलवर्ट ने हिंदुस्तानी फिल्म में गाना गाया और वो इतना चला कि वो बिल्कुल जो उनका गीत गाया पत्थरों ने, वो इतना चला कि उसकी वजह से फिल्म इतनी वो चली कि इट ब्रोक ऑल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। उसके बाद अब आते जाएं तो कितने आर्टिस्ट हैं। हमारी लता मंगेशकर जी ने कितने साल इंडियन सिनेमा को एक मुकाम पे रखा, जहां उनकी कंट्रीब्यूशन से, बीइंग अ वुमन, उनकी कंट्रीब्यूशन से सिनेमा, जहां वो गाती थी तो वो पक्का था कि ये फिल्म के गाने चलेंगे तो ये सिनेमा भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि जहां से मैं देख रही हूँ, women have always been holding very powerful position in bringing Indian cinema to what it is today। बल्कि अब मुझे लगता है कि जहाँ से आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी कमी आती जा रही है कि उस टाइप का गाना नहीं होता है। मुझे, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड से जहाँ से मैं आ रही हूँ, मुझे लगता है कि क्लासिकल म्यूज़िक और डांस फॉर्म बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और अगर सिनेमा इतना इम्पैक्टफुल है, यंग लोग इतने उससे इंस्पायर होते हैं, तो क्यों ना हम इस मीडियम को, इतने स्ट्रॉन्ग मीडियम को, अपने इतनी पुरानी कल्चरल धरोहर को उनके सामने इसके थ्रू क्यों नहीं लाए। पहले तो सिनेमा में सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस हुआ जाता। आप देखिए जोरा सहगल भी जो कॉन्टेम्प्रेरी डांस करती थी, लेकिन फिर उन्होंने भी धीरे धीरे बीच में बहुत सारा अपना कथक और बहुत सारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऐड किए। मेरे हिसाब से आप देखिए जितनी एक्ट्रेसेस भी थी, कितनी, अब आप आज मतलब 10-15 साल पुराने की बात करें अगर आप, तो माधुरी दीक्षित ने बिरजू महाराज जी से डांस सीख के आए। आप देखिए कितने लोग, अभी ये इतनी फेमस जो बाजीराव मस्तानी में सबसे फेमस उसका डांस फॉर्म रहा जो दीपिका पादुकोण ने बिरजू महाराज जी से सीखा। तो मुझे लगता है कि विमेन जहाँ जो उनका जो आर्ट फॉर्म जो जिसको वो प्रेजेंट करते रहे, किरदार स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, लेकिन जो गाना रहा है या बजाना रहा या नृत्य रहा इन सिनेमा में। अभी आप देखिए जलसा घर एक बहुत फेमस पिक्चर थी, उसमें बेगम अख्तर खुद से बैठ के गाई। तो वो उस फिल्म में सत्यजीत रे की, उस टाइम तो वो फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में वो फ्रांस वगैरह में उसको कितना क्रिटिकल अक्लेम मिला। तो उसमें विमेन वो उनका गाना बहुत सराहा गया और उनकी अपनी प्रेजेंस बहुत सराहा गई। तो मुझे लगता है कि जो गाना बजाना और नृत्य रहा है सिनेमा में, वो विमेन डोमिनेटेड रहा है और उसकी वजह से दे हैव बीन इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑल अलोंग। बिल्कुल, इस पर मैं रीला जी से लूँगा, लेकिन एक इकबाल जी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि एज ए फिल्म इंथुजियास्ट, फिल्म स्टूडेंट, जो आप पिछले इतने साल से फिल्मों को लेकर आपका जो काम रहा है, 3 कैरेक्टर मेरे को याद आते हैं जो आपसे डिस्कशन में हुए थे। मदर इंडिया की माँ अपने बेटे को सिद्धांतों के तौर पर गोली मारती है। दीवार की माँ एक रईस बेटे को छेड़कर एक कम कमाने वाले बेटे की तरफ जाती है उसूलों की खातिर। और फिर राजी का जिक्र आप ही ने किया था कि राजी की वो एक कैरेक्टर जो कि पाकिस्तान जाती है, वहाँ वो प्रेग्नेंट होती है लेकिन हिंदुस्तान वापस आती है, पर उसूल देशभक्ति के बावजूद भी उस बच्चे को जन्म देती है। ये 3 किरदार 3 फिल्मों के नाम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 3 कालों में महिला के चरित्रों को दिखाया और गढ़ा है। आपकी नज़र में वुमेन इन सिनेमा का ये पड़ाव किस तरह से है, किस दिशा में है और कितनी मजबूती के साथ है? हमारे समाज में, अभी जयंती जी ने कहा था कि सिनेमा अपने समय का आईना होता है। मदर इंडिया जब
थी तब और जब दीवार थी तब हमारे समाज में माँ की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी और उसको सिनेमा पे इस तरह से पेश करा जाता था कि वो एक देवी है और उसे बड़ा पसंद करा जाता था। सब लोग कहते थे कि हाँ माँ ऐसी होना चाहिए। हालांकि वो ज़रूरी नहीं था कि माँ वैसी ही हमारे समाज में रही हों, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होती थी कि अगर बेटा गलत राह पे है और मौका आए तो गोली मार दे माँ उसे, और जो हराम की कमाई बेटा कर रहा है उसके पास ना जाके वो जो हलाल की कम कमाई करने वाला है उसके पास उसका समर्थन करे, उसको सपोर्ट करे। लेकिन फिर भी वो आज़ादी उसको, यानी एक खाना जो माँ का उसको बना दिया गया था वो रही उसके ही अंदर कैद। वो उसकी उपलब्धि यही होती थी कि वो एक शानदार माँ है और बहुत अच्छी पत्नी है। मैं बरसों के सिनेमा को अगर देखूं तो आपको कैरेक्टर ऐसे ही मिलेंगे कि दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देना, उसका अपना शौक़, अपनी सोच वो कुछ होती ही नहीं थी। शादी के बाद उसने बच्चा पैदा करा, बच्चे को पाला, बच्चे को जवान कर दिया, अब उसकी भी शादी कर दी, फिर जब उसके बच्चे आए तो वो उसे खिलाने लगी। आम भारतीय जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में यही नारी का था। राज़ी इसलिए मुझे थोड़ा सा झकझोरती है कि वो माँ है, बायोलॉजिकल वो चाहती है कि वो माँ बने। अब मसला ये आ गया कि वो प्रेग्नेंट हुई है एक पाकिस्तानी फ़ौजी से, तो यहाँ धर्म संकट ये है कि क्या अबॉर्ट करा ले, वो मार दे उसे ताकि ज़िंदगी भर का कलंक ख़त्म हो जाए। किस किस को जवाब देगी जब बेटा बड़ा होगा कि इसका बाप तो वो पाकिस्तान की उस फ़ौज का वो था। वहाँ पर वो ये फ़ैसला लेती है इंडिविजुअल अपना, माँ बाप से अलग, समाज से अलग, और वो फ़ैसला बहुत बड़ा है। निजी ज़िंदगी में अगर वो कोई फ़ैसला लेता है तो उससे मजबूत कैरेक्टर तो मुझे नहीं नज़र आता है कोई। वो लौटती है और कि उसे माँ बनना है, वो ठीक है एक दुश्मन देश के उसमें वो गई इसलिए थी, वो भी राष्ट्र के लिए गई थी, वहाँ से कुछ उसे जानकारियाँ हासिल करके अपने मुल्क में भेजनी थी, इसके लिए उसे शादी करना थी। तो शादी हुई बाकायदा शादी की तरह, और वो आके ये जो बदलाव है ये वही समाज का बदलाव है। माँ बनके वो आज भी बच्चे को वैसे ही पालना चाहती है जैसा नरगिस ने पाला था मदर इंडिया में। उसकी जज्बे में, भावनाओं में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे बहुत से किरदार हैं, लेकिन हाँ अब उसकी सोच थोड़ी सी बदली है। वो ये कह रही है कि ये जो तुमने एक त्याग की मूर्ति बना के रखा हुआ था ना यार, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए ढांचे पे ही चलूं तभी एक सफल माँ रहूँगी। मैं अपनी मर्जी से भी माँ बन सकती हूँ। और ये बदलाव हमारे समाज में बहुत बड़ा है, और जाहिर सी बात है वही बदलाव हमें अब सिनेमा में दिख रहा है। ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा मुखर होके महिलाओं के किरदार इसलिए आ रहे हैं कि अब वो समाज में भी ज़्यादा मुखर और वो हो गई हैं। अब ऐसा नहीं है माँ बाप तय कर देते हैं तो वो शादी कर लेती है, या उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है पढ़े लिखे घर चलाने लायक हो जाए तो उसकी एक अच्छी जगह शादी कर दी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चूंकि ऐसा नहीं है तो जो बदलाव समाज में आ रहे हैं और नारी की सोच में आ रहे हैं वो आपको सिनेमा में इस वक्त लगातार हर तीसरी चौथी फिल्म के अंदर एक कोई चौंकाने वाला किरदार आ जाता है। मैं इस पूरी यात्रा को इस नज़र से देख रहा हूँ। जी, मैं रीला जी आपसे सवाल कि हिंदी फिल्में इसलिए अलग मानी जाती हैं, पूरी बॉलीवुड का रहता है कि हमारी फिल्मों में डांस अलग होता है जो कि हॉलीवुड वाले चाहकर भी शायद नहीं कर पाते हैं। भारतीय फिल्मों में नृत्य को किस भावना के साथ दिखाया गया, मतलब हम उसको माने कि वो प्रेम का एक उदात्त प्रदर्शन होता था, एक ऑस्टेंसिबल डिस्प्ले है, तो फिर उसको, उसकी यात्रा को आप कैसे देखती हैं, और क्या उसने बदलते हुए समय के जो सामाजिक परिवेश में जो बदलाव आते हैं उसको एक तरह से डिस्प्ले किया या नहीं किया? Thank you so much, Anurag ji, for inviting me to be a part of this discussion. I'm not an expert in cinema, but I believe that there are certain universal principles that go across arts. So from that sense, I will express my opinion, especially given my background in yoga and spiritual life. So कोई भी डिस्कशन अगर हम क्लासिकल डांस के बारे में करें सिनेमा का उस दौर का, तो मैं विजयंती माला बाले जी
के डांस से शुरू करूँगी। और मैं यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है उदाहरण के तौर पे, वो है आम्रपाली का एक डांस है नील गगन के छाँव में। वो बहुत ही खूबसूरत गाना है और इसमें कुछ लोग आप शायद जानते ना हो या जानते हो कि इसमें उन्होंने एक किरदार निभाया था कि वो एक कोर्टिजन हैं एंड शी फॉल्स इन लव विद दिस किंग अजातशत्रु and who has disguised himself as a soldier to spy and eventually conquer the kingdom where Amrapali lives, this courtesan lives. And in this song, it is set in the king's darbar, and so she's missing her lover, and she's dancing to a song of love and longing, and remembering her intimate moments with him in very sweet, poetic way. अब वो पहन रही हैं, she's wearing a very form-fitting dress. She's looking extremely beautiful and sensuous. Is she being objectified? I believe not, because here the dominant emotion behind the lyrics, the aharya, the movements, the setup is what you said, love, or what we call in Odissi dance, rati. And कितने खूबसूरती से उन्होंने पुरुषार्थ और मोक्ष भी दिखाया है कि ये जो श्रृंगार हम इसको बोलते हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस फिर कैसे शांति रस में चला जाता है, बिकॉज देन आम्रपाली बिकम्स अ भिक्षु एंड हर रोमांटिक लव के कई रूप हो सकते हैं, वो रोमांटिक हो सकता है, वो डिवोशनल हो सकता है, ऊर्जा तो वही है, बस रंग बदल देता है। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने वो डांस के माध्यम से भी, और प्लॉट ऑफ कोर्स डांस तो एक प्लॉट में उसका सेटिंग होता है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है। और मैं खुद भी एक ओडिसी नृत्यांगना हूँ, तो मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तो मेरा आहार्य भी वही रहता है कि बहुत खूबसूरत अपने आप को दिखाएं। हमारा मेकअप रहता है, हम बाल के ऊपर बहुत खूबसूरती से उसके ऊपर बहुत समय गुजारते हैं कि अपने आप को हम बहुत खूबसूरत बना पाएँ, ब्यूटीफुल बना पाएँ। हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम कई साधना करते हैं, कई साल लगाते हैं, उसको हम बहुत खूबसूरत करें। और फिर हम राधा कृष्ण जैसे नायक नायिका का भी रोल हम दिखाते हैं, जिसमें कभी कभी नायिका जो है वो बहुत एक तरीके से सिंपरिंग है, मतलब वो चीट कर रहा है उसके ऊपर, पर फिर भी वो उन्हीं के पास जाती है, उनके साथ झगड़ा करती है, पर उनको वो मतलब मेल मिलाप फिर हो जाता है, वो फॉरगिवनेस आ जाता है, वो पॉजिटिव इमोशंस में बदल जाता है। ये और कई बार ऐसा होता है जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो बहुत ही उसमें बहुत इंटीमेसी से और बहुत ही ओपननेस में हम इस चीज़ को विदाउट शेम हम दिखाते हैं, उसमें हमको कोई एम्बैरेसमेंट या शेम नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो क्या चीज़ है कि उस समय जब मैं डांस करती हूँ खूबसूरत आहार्य में, और वो चीज़ करने के बावजूद जो लोग हैं वो मेरे तरफ जो आकर्षित होते हैं वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। सो लव इन डांस इफ शोन इन द राइट वे कैन स्पिरिचुअलाइज द पर्सन हु इज़ डांसिंग एंड द व्यूअर हु इज़ ऑब्जर्विंग। तो सिनेमा में भी यही चीज़ है। ये उदाहरण लेके मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई कम कपड़े पहनने से कोई औरतों का अपमान नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें वो जो उन्होंने उस समय दिखाया वो लव और सेक्सुअल डिज़ायर दोनों को दिखाया है। तो जब लव डिज़ायर के साथ काम के साथ जुड़ जाता है तो काम हम मानते हैं हमारे आध्यात्म में कि काम जो है वो एक तामसिक वाइब्रेशन है। हमारे चक्रों के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, तो हमारे लोअर चक्र का एक इमोशन है। तो काम सिर्फ करेंगे, जो लस्ट सिर्फ करेंगे, उससे नेगेटिव प्रभाव आता है हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर। पर जब हम रति को उसमें या लव को उसमें दिखाते हैं तो वो काम को ऊपर की तरफ खींच लेता है और उसको तामसिक, राजसिक, फिर सात्विक की तरफ
वो ले जाता है, क्योंकि लव जो है वो एक अनाहत चक्र या सात्विक इमोशन है। तो कोई कम कपड़े से या रोमांस से या उस चीज़ से या कि नृत्यांगना है तो क्या तड़प रही है अपने उसके लिए, नायक के लिए, उससे कोई शक्ति का कम नहीं होता है। वो एक चीज़ है जो हम दिखाते हैं टू इंटेंसिफाई लव, कि हम अलग अलग सिचुएशंस दिखाएंगे, क्योंकि अगर सीधा सीधा आप लव दिखाते हैं तो बिल्कुल ही बोरिंग है, ख़त्म हो गई कहानी 1 मिनट में। पर आप अगर उसको एक प्लॉट बनाएंगे, सेपरेशन दिखाएंगे, डुअलिटी दिखाएंगे, उसमें इनफिडेलिटी दिखाएंगे, तो उसमें हमारा क्या होता है, वो ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये मैं कहना चाह रही थी। पहले तो वेस्टर्न डांस, देखिए हम लोग ना बहुत ये वेस्टर्न डांस को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न डांसर्स हैं जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है और हीलिंग है। आप अगर देखेंगे टैंगो डांस, उसमें रिसर्च किया गया है कि टैंगो डांस जो है वो पार्किंसंस पेशेंट्स को बेहतर बनाता है। तो उस समय जैसे चा जैसे 50s और 60s, उस समय जो कि ये लोग सिनेमा में यूज़ करते थे, जाके वो चा हो या कुछ वॉल्ट्स तरीके का हो, तो वेस्टर्न डांसेस भी जो सिनेमा में उस समय प्रयोग होता था वो भी बहुत खूबसूरती से वो प्रदर्शन करते थे। अब मुझे लगता है चाहे वो इंडियन डांस हो, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, कंटेम्प्रेरी हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो वेस्टर्न के भी ये सारे हैं, क्योंकि वेस्टर्न के भी इतने सारे आपके डिवीज़न, मतलब अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं कि वो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक उनके भी होते हैं, ट्राइबल उनके भी होते हैं। पर ये है कि उस समय हम लव को ज़्यादा दिखाते थे, अब हम क्या हैं, वो तमस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम उसको लस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और ये ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब एक जनरेशन गैप तो हमेशा मैं सुनती आई हूँ। अब मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे पहले हमारे ज़माने में ये होता था, अब मैं अपने छोटे को बोलती हूँ कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था। पर फिर भी मैं बोलूँगी कि उस समय क्या होता था, एक बहुत चीज़ है वे विमेन आर कंसर्न इज़ दैट विमेन यूज्ड टू बी द गुड, the manifestation or the symbol of goodness, of purity, of sacrifice, of always walking the path of dharma. So she was a spiritual being. If she was a wife who would take take her husband, जो भी वो करती थी उसकी चॉइस थी, but she was a spiritual being, वो धर्म के ऊपर मार्ग में चलती थी। अगर वो रानी की झांसी हुई और उसने तलवार पकड़ा तब भी वो धर्म के ओर जाती थी। और जो वैम्प थी वो हमेशा परेशान रहती थी, मतलब वो गलत कर रही है तो उसका अंत हमेशा खराब होता था। अब वो डिवीज़न नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम संस्कार लोगों को देना चाहते हैं, हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो ख़त्म है, इन अ सेंस कम हो गया है, नॉट ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा अभी ऐसा महसूस होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ भी करके आगे जा सकती है। आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं जी। मैं जो रीला जी ने कहा है इसको मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलना चाहूँगी। आप जर्नी की बात कर रहे हैं नृत्य की इंडियन सिनेमा में, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले तो आप देखिए म्यूजिशियंस या डांसर्स खुद ही एक्टिंग भी करते थे और डांस भी करते थे। फिर एक दौर आया जैसे इन्होंने वैजयंती माला बालाजी के बारे में बोला, हेमा मालिनी जी हैं और बहुत एक्ट्रेसेस हैं जो ऑलरेडी, वहीदा रहमान जी जो ऑलरेडी ट्रेंड डांसर्स थी, और वो जो अपनी डांस की प्रेजेंटेशन करती थी वो एक प्योर फॉर्म में डांस को प्रेजेंट करती थी सिनेमा में। धीरे धीरे फिर कुछ फिल्मों में जैसे आपने देखा होगा शतरंज के खिलाड़ी में शाश्वती जी ने परफॉर्म किया, तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आर्टिस्ट को, डांसर्स को इनवाइट करते थे परफॉर्म करने के लिए। फिर धीरे आगे आप आए तो कुछ एक्टर, मीनाक्षी शेषाद्री खुद भरतनाट्यम की डांसर थी, सीखी हुई थी। फिर उसके बाद अब जैसे माधुरी दीक्षित ने सीखा, लेकिन हर फिल्म के साथ फिर वो कभी बिरजू महाराज जी से सीखती थी। आप फिर और भी आगे आइए, आज की जो जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट है, जो अगर अब करंट यंग एक्टर्स की मैं बात करूं, विमेन फीमेल एक्टर्स की, तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ पीछे छूट गई है, उसको आगे ज़रूर लाना चाहिए। एक वो जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म के थ्रू आपका जो डांस है
पता नहीं ये आगे और जाके कहाँ क्या शेप लेगा, लेकिन एक बहुत शक्ल बदल गई है हमारे डांस फॉर्म्स की इंडियन सिनेमा में। कहाँ अभी की जो है ये बिल्कुल अलग शक्ल है जो आज से 75 साल 70 साल पहले थी। जी अच्छा, इसमें हम ये जो बात कर रहे थे हीरोइन और वैम्प की, कि पहले जो है हीरोइन अलग होती थी, वैम्प अलग होती थी। अब जो है ऐसा नहीं है, एक ही जो किरदार वो दोनों निभा रहा है। तो उस पर मैं कहना चाहूँगी कि आज की दुनिया में हम जो भी औरतें हैं या जो भी लड़कियां हैं, बिल्कुल हम ग्रे हैं, हम ना ब्लैक है ना वाइट है, और हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, माफ़ कीजिएगा, है ना। हमें अगर घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी एस्पिरेशंस हैं वो भी हम पूरा करेंगे। और हमेशा हम कोई बहुत अच्छे होने की पदवी अपने सिर पे लाद के नहीं चलेंगे। तो जैसे एक आदमी के अंदर दोनों होता है, बिल्कुल एक आदमी जो है वो ग्रे भी होता है, वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, एक औरत भी होती है। ये मत सोचिए कि औरत देवी होती है और औरत जो है वो अगर वाइट है तो देवी है और ब्लैक है तो वैम्प है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। औरतों के पास फिल्मों में कभी चॉइस नहीं रहा। तो अब चूंकि औरतें खुद अपना किरदार गढ़ने लगी हैं तो अपने जैसा बना रही हैं वो। अब एक लड़की जो है वो तय करती है कि उसे क्या पढ़ना है, उसे कौन सी नौकरी में जाना है, उसे किसके साथ प्यार करना है, प्यार करते हुए लड़के को छोड़ देना है क्योंकि लगता है कि ये ठीक जीवन साथी नहीं है या इसकी आदतें ठीक नहीं है, ये हमारी इज्जत नहीं करता, इसे छोड़ दो। पहले के ज़माने में अगर ब्रेकअप हो जाए तो वो लड़की रोती रहती थी। आप देखिए आंसू बहाने वाले तमाम मिल जाएंगे, मीना कुमारी से लेके आपको हेमा मालिनी तक मिल जाएंगे। अब लड़की आंसू नहीं बहाती, अब लड़की मूव ऑन कर देती है जैसे एक्चुअल ज़िंदगी में करती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप ब्लैक कहेंगे? मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ एज नॉर्मल एज पॉसिबल। जैसे समाज है वैसे फिल्म की नायिकाएं हैं, तारिकाएं हैं। भाई हम ही लोगों में से एक गढ़ रहा है, हम ही लोगों में से एक काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल आज की जैसे लड़की होगी वैसे ही लड़कियां होती हैं। जैसे गली बॉय जो बिल्कुल रीसेंट मूवी है, उसका एक किरदार है सफीना का, उसका उदाहरण लेना चाहूँगी। वो हीरो से बहुत प्यार करती है लेकिन वो खुद जो है अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने की राह पे है। बिल्कुल घर वाले नहीं चाहते कि वो एक ड्राइवर के बेटा जो बिल्कुल फितरू है, फालतू है, हाँ, जो रैप बनना चाहता है, उससे शादी करे। वो लड़की कितने अच्छे से अपने को असर्ट करती है। अगर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड है या वो उससे ज़रा ज़्यादा क्लोज हो रहा है, पहुंच जाती है, उसे मारपीट कर देती है, बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं करना, घोचा पिची या घोपा घोपी जो भी मुंबईया शब्द है वो नहीं करने का, और बिल्कुल लास्ट तक लड़ती है, उस बंदे का साथ देती है। तो ऐसी लड़कियां हैं आज की, और सच कहें तो हमें ऐसे ही किरदारों की ज़रूरत भी है। ये चूँकि विषय ऐसा है कि इसमें सभी लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो लिहाजा एक आग्रह आपसे भी है कि अगर आपको कुछ लगता है तो हम आज से भी सवाल ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के लिए, जो कुछ कहना चाहें या सवाल करना चाहें। इकबाल जी, मेरा सवाल है कि ये एक बड़ा लंबा समय तक डिस्कशन रहा कि समाज का आईना होती हैं या फिल्में समाज को आईना दिखाती हैं। मतलब जो ये बदलाव है, जो कि जयंती रंगनाथन कह रही है कि हमको वो नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या मदर इंडिया, क्या 70s की फिल्मों की वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बेकार थी और आज की रेलिवेंट हैं? इस विषय को कैसे आप देखते हैं? नहीं मतलब ये बहस की कौन किसको आईना दिखाता है? मैं यही कहना चाह रहा था कि वो जो कैरेक्टर थे बंदनी वाला, ज़िंदगी भर वो प्यार कर रही है एक क्रांतिकारी से और उसको जेल हो जाती है या वो गायब हो जाता है और उसकी अनुपस्थिति में उसे जेल हो जाती है, और एक डॉक्टर उससे प्यार करने लगता है। फिर वो जब मौका आता है कि डॉक्टर का हाथ पकड़ ले, तब पति आ जाता है। अब वो छोड़ के पति के साथ चली जाती है क्योंकि उस समय के आदर्श यही थे एक महिला के लिए कि वो पति मिल गया तो भाई उसे पति के ही साथ रहना है। तो वो दौर बदला, वो दौर बदला। अब जो आप दिख रहा है वो इस दौर में है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है और समाज सिनेमा को प्रतिबिंबित करता है। तो ये वाइसी वर्सा चल रहा है। जो भी बदलाव दिख रहे हैं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ये जितने भी महिला कैरेक्टर अब पिछले 20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, ख़ास कैरेक्टर पिंक वाला या थप्पड़ वाला वो दिख रहा है, वो लोग ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका या दुबई या कहीं से पढ़ के आई थी और उनके साथ यहाँ ऐसा हुआ और उसके ऊपर फिल्म बन गई। वो हमारे एक जो बदलाव है वो छोटा सा मैं आपको बताऊं, वो ये हुआ कि लड़कियां आम तौर पर, ये खुल के कहते नहीं है लेकिन था, बोझ थी।
बाप के सर पर बोझ थी लड़की, जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। सारी जिंदगी बाप इस बात में गुजर जाता था कि किसी तरह से लड़की के मैं हाथ पीले कर दूं। धीरे 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 हमें पता ही नहीं चला कि कब वो सर का बोझ पापा की परियों में बदल गया। एक टर्म आ रहा है आजकल, पापा की परियां, पापा की परियां। अब वो वाकई पापा की परी बन गई है। तो वो परी कहती है कि भाई फैसले तो अब मैं लूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विद्रोह करूँगी, आप जो कहोगे उसका हमेशा उल्टा करूँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरी भी तो सुन लो। और वो सुना रही है। अब जब वो सुना रही है अलग अलग शेड्स में, अलग अलग उसमें, तो आपको अलग अलग कैरेक्टर सिनेमा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और सिनेमा मेकर्स को भी ये पता होता है कि हम वो कौन सा ऐसा सिनेमा बनाएं जो चले का मतलब है लोग उसे पसंद करें। उन तक ये बात पहुंच रही है कि भाई महिलाएं अब बहुत बदल गई। यानी पिछले 20-25 साल में, या आप कह लें उदारीकरण के बाद, जितनी तेज़ी के साथ समाज बदला और सबसे ज़्यादा महिलाएं बदली, उतना शायद 5-6 सदियों में नहीं बदल पाई थी भारत के अंदर। तो वो फिल्म मेकर्स को पता है। फिल्म मेकर्स को इसलिए पता है, इसलिए वो अगर पठान के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो 12th पास जैसी, थप्पड़ जैसी, राजी जैसी, पिंक जैसी फिल्मों के ऊपर भी आ रहे हैं कि यार लोग इसे भी देखना चाहेंगे और पसंद कर रहे हैं लोग, और पसंद कर रहे हैं तो और फिल्में बन रही हैं। ये सारा पूरा जो खेल है वो इस बदलाव का है। जैसे बंदिनी का जिक्र किया कि वो अंत में अपने पति के पास लौट जाती है, तो वो पूरा दौर वही था। और 80 के दौर की शुरुआत में एक फिल्म आई थी अर्थ ने पूरा एक मायना बदल दिया। वहाँ जो पत्नी है वो अंत में अपने पति से सवाल करती है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती और मैं अगर किसी के साथ चली जाती तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते। मतलब पति यहाँ वापस आ रहा है अपनी एक्स उसको छोड़ के, तो पति कहता है नहीं, मैं नहीं कर पाता। तो कहती है यही जवाब तुम्हारे लिए भी है। तो ये आप बताइए ना, बंदिनी से लेके वहाँ तक का सच कितनी बड़ी बात है। अब 80 से आप फिर अभी आ जाइए, बिल्कुल 10 साल पहले की फिल्म है क्वीन, और क्वीन की लड़की जो है वो बिल्कुल भोली भाली है, उसे वह बिल्कुल बंदिनी की लड़की और अर्थ की लड़की कह सकते हैं। दिल्ली में वही पापा की परी है, बहुत प्यार से पली बड़ी है, और पापा के दोस्त के लड़के से ही शादी हो रही है, और लड़का एन शादी के एक दिन पहले मुकर जाता है। उस लड़की में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, उस बेचारी ने 3-4 साल से यही सोच रखा है कि ज़िंदगी में ये जो कहेगा वही करूँगी। हाँ, लेकिन जब शादी टूट जाती है तो उसका सपना है पेरिस जाने का, तो वो पेरिस जाती है अकेले हनीमून पे, और उसका नया चोला देख के उसका जो भी फियांसी है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन अंत में अर्थ की हीरोइन की तरह वो जाती है और अंगूठी उसे वापस देके अपने आज़ादी का बिगुल बजाती हुई लौट आती है। तो ये आप समय के साथ देखिए ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि नरगिस ने मदर इंडिया में जो किया है वो गलत है, या बंदिनी में जो, उस वक्त वही होना था भाई। वहीं से तो चल के हमारी औरत यहाँ आई है, हमारी दादी नानी थी, हमारी माएँ थी, हमारी बेटियाँ। भाई हम आगे चलेंगे ना, हम पीछे की तरफ तो नहीं चलेंगे। तो ये आगे की राह दिखा रही है ये सारी लड़कियाँ फिल्मों में विभिन्न किरदारों के माध्यम से। जी, अब मैं भी इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगी। इकबाल साहब से मैं बोलूँगी कि आजकल बहुत सारी सिनेमा ट्रू इंसिडेंट्स, ट्रू स्टोरीज़ पे बन रही है। आपकी जो राजी है वो भी एक ट्रू स्टोरी पे है। उसमें जो उसने सैक्रिफाइस किया या जो डिसीजन लिया उस लेडी ने, आज से वो 1960-70 की स्टोरी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उस समय भी विमेन वर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इनफ टू बी एबल टू टेक अ डिसीजन लाइक दैट एंड टेल द वर्ल्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक द डिसीजन, आई एम गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ आर्मी ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान, वट एवर। बट आपका इस बात पे क्या, जो आजकल नई जो चल रही हैं फिल्में जिसमें ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड हैं, तो वो सोसाइटी का मिरर है या सोसाइटी उनसे सीख रही है? आपका क्या मानना है इसमें? सोसाइटी कितना सीख पाती है ये बहस आज से नहीं, बहुत पहले से है। जब वो देवानंद बाल ऐसे बनाते थे और अचानक नौजवानों की एक पूरी जनरेशन बाल ऐसे बनाने लगी, तो ये लगता था कि यार फिल्मों में जो भी होता है वो सब सीख लेते हैं। लेकिन हालांकि तब भी ऐसा नहीं था। एक ख़ास वर्ग होता था, लड़कों की एक उम्र होती थी, वैसे बना लेते थे बाल। अमिताभ बच्चन ने जब कान पे बाल रखे,
महिलाएं साधना का वो करने लगती थी। तो ये था तो, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो महिला, ये कहानी जो है वो 30 साल पुरानी है राजी की। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर कि अब ये किरदार भले ही वो 50 साल पहले थे, वो पर्दे पे अब आ रहे हैं। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी राजी जैसी फिल्म बना देता 80s के अंदर। तो ये जो बदलाव सिनेमा में आ रहा है, मुझे लग रहा है ये बदलाव औरतों के हक़ में है, औरतों के हक़ में, समाज के हक़ में भी है। समाज में मर्द हमेशा ये मान के चलता था, उसने जो औरतों के बारे में सोचा हुआ, औरतें लगभग वैसी ही होती हैं। अब जाके उसको ये लग रहा है अच्छा औरत ऐसी भी होती है, अच्छा औरत ये भी चाहती है, अच्छा उसके सेक्सुअल डिज़ायर ऐसे भी हो सकते हैं, वो रिएक्ट ऐसे भी कर सकती है। तो ये सिनेमा के ज़रिए एक ख़ास वर्ग को तो पता चल ही रहा है, भले ही पूरे हिंदुस्तान को ये ना पता चल रहा हो कि भाई महिलाएं क्या चाहती थी। चलो एक सिनेमा देखें, उसमें पता चल जाएगा कि महिलाएं क्या चाहती हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज को पता तो चल रहा है कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और वो बदलाव सही है या गलत। अभी हमारी बातचीत के अंदर ये मुद्दा रह गया है, वो बदलाव सही है या गलत, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है अंडर कारपेट। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का जो खुलापन होता है, वो चाहे विचारों का हो चाहे कपड़ों का हो, वो मर्द आसानी से एक्सेप्ट कर नहीं पाता है। उसमें बड़ी तकलीफ होती है। चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हांडी पक रही है। बिना एंकर के पूछे अगर आपस में पैनलिस्ट बात करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि थोड़ा डिस्कशन इंटरेस्टिंग है। रीला होता है जी, कुछ कहना चाहती हैं? बहुत से लोग हाथ भी उठा रहे हैं, पीछे से भी आता है। थोड़ी देर के लिए मैं लेता हूँ जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अभी के हाल ही में एक मूवी आई थी बाहुबली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं कितने बार उसको देखी हूँ। और उसके जो डांसर्स हैं, आप वही चीज़ मैं दोहराऊँगी कि उस दौर या इस दौर, या वो मैंने कहा ना कि हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग पीछे की तरफ बोलते हैं कि उस समय ऐसा होता था, अब इस तरीके से हो रहा है। मतलब लोग फास्ट हो रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, ब्लाउज छोटा पहन रहे हैं। उसके अंदर मैं नहीं जा रही हूँ। मैं एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि एक जेंडर न्यूट्रल भी है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सोचते हैं, मतलब ऑफ कोर्स माई मैनिफेस्टेशन इन दिस वर्ल्ड इज़ दैट ऑफ अ वुमन, बट है तो हम अर्धनारीश्वर हैं। तो मतलब हम एनर्जी, और हम चाह तो रहे हैं कि हम शिवा की तरफ जाएं, जो हमारे कॉन्शियसनेस है। तो मैं अपने माता पिता दोनों को प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई बहन दोनों को प्यार करती हूँ। तो मैं बाहुबली तक आती हूँ। पहले वो मैं क्लियर कर दूँ कि मुझे ऐसा, और ग्रे एरियाज़ की बात जो है, हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हम लोग सब, ऐसा नहीं कि मैं अभी मिठास से आपको सत्व रजस तमस के बारे में बोल रही हूँ तो मैं कोई सात्विकता में पहुँच गई हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी गुरु हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन की अनुभूति ऐसी रही है कि मैंने खुद अपने आप को बहुत बदलाव लाने की मैंने कोशिश करी है कि मैं तमस से, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाऊँ। तमस का मतलब ये है कि आपकी एंगर जो है वो थोड़ा सा लोगों के बारे में गलत बोलना, वो तामसिक एंगर होता है। राजसिक एंगर होता है कि उनको मारपीट करना, सेक्सुअल वायलेंस करना। ये कई तरीके से होता है। मेन के अगेंस्ट भी आप कर सकते हो, बच्चों के अगेंस्ट भी कर सकते हो, वुमेन के अगेंस्ट भी हो सकता है। जो सात्विक जो भाव है उसको मैं अपने जीवन में मैं करी हूँ। तो मैं सिनेमा की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने उनके ऊपर कोई रिसर्च किया है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक मतलब एज अ डांस एक्सपर्ट, एज अ योगी मैं आई हूँ। और क्योंकि मैं आश्रम से बचपन से जुड़ी हूँ तो हर चीज़ में जो सोचती हूँ या करती हूँ वो उस बैकग्राउंड से मैं बोलती हूँ। तो फिर मैं आती हूँ बाहुबली के बारे में। तो बाहुबली में एक बाहुबली 1 में और 1 में द एक्टर प्रभास, he sees this very nice like a artwork, and he thinks that this is the painting of a very beautiful woman. So he fantasizes that this very beautiful woman is dancing on top of the mountain for some of our international guests who are here. So he fantasizes that this woman is dancing on the mountain and how he struggles to climb up. So there's a waterfall, he falls, he slips, he struggles, but he's continuously trying to reach her. All the while, there is this beautiful dance that is happening, which is so much a part of our Indian cinema.
उसमें again the girl is very sensuous, very lovely, very like very sensuous clothes, and but at the same time it's a very elevating thought process that a man अभी हम man बोल रहे हैं, but a partner or another human being can go that far to reach you. It's not like you go to a bar, उसने drink किया आपको और आप उसकी हो गई. So it's a very elevating feeling. It feels like, oof, I wish, I had people like that who would do anything, who would risk their life to be with me. और एक strong और किरदार थी जो बाहुबली 2 में थी, of the princess, the warrior princess. Now she is a very strong, they have shown her as somebody who's very strong, who has her own personality. Both the characters, women characters, were very strong. And then there is a song in that in which it ends with a kiss, right? Again, the same thing is that a strong woman can show very sensuous movements and still elevate the audiences because of the sattvikta or the purity of the plot and of the scene. हम कुछ सवाल हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आप चारों से थोड़ा सा ब्रीफ आंसर मैं आपसे चाहूँगा. जब हम वुमेन इन सिनेमा की स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेल की बात करते हैं, इकबाल रिजवी आपसे शुरुआत करूँगा, उसका मतलब क्या है? बंदूक उठाने वाली नारी, गालियाँ बकती हुई हीरोइन, वर्जनाएं तोड़ती हीरोइन, किस तरह की है ये कैरेक्टर? सिर्फ हम वुमेन में ही क्यों है? ये तो पुरुष करता तो हम तो नहीं कहते. मेल ओरिएंटेड फिल्म है, हम क्यों इसकी एक ब्लॉकिंग करते हैं? क्यों हम बाइनरी में देखते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा वुमेन सेंट्रिक है? हमें नरगिस याद है क्योंकि उन्होंने बंदूक उठाकर अपने बेटे को मारा था. हमें बहुत से ऐसे कैरेक्टर याद नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहे होंगे. ऐसा तो मेल में अमिताभ बच्चन, तमाम लोगों ने ऐसे किए हैं. वुमेन इन सिनेमा में क्यों चीज़ें याद रह जाती हैं? वो क्या एक एक्स फैक्टर होता है? देखिए, स्ट्रांगनेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, मर्द और स्ट्रांगनेस. ये कोई ख़ास बात नहीं है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, वो बना ही गया था फिजिकली, उसको कुदरत ने बनाया ही बहुत स्ट्रांग था, तो उसको स्ट्रांग. बट ओनली मस्कुलिनली, फिजिकली मतलब मेंटली भी उसको बाहर से जो घर के बाहर निकल के जो स्ट्रगल, संघर्ष पूरा वो करना पड़ता है, वो उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है दिमाग में, ऐसी बात नहीं. महिलाओं के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जो बात हो रही है वो हो रही है कि एक जो उनके, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, हमारे समाज में ज़्यादातर बंधन महिलाओं के लिए थे. वो बंधन समय के साथ साथ साबित हुए कि कुछ तो ठीक है यार, लेकिन कुछ तो बहुत ही ख़राब है, ये तो बिल्कुल कैदी बना दिया इसे. उन बंधन को जिसने तोड़ने की कोशिश करी और सफल हुई, उस नारी का जब कैरेक्टर किसी सिनेमा में आता है, हम उसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि उसे तो कैदी बना के ही रखा गया था, लेकिन उसने हालात का मुकाबला करके, और पिस्तौल उठाना एक अलग बात है. बैंडिट क्वीन का आप एक मिसाल दे सकते हैं. उसने, वो परिस्थितियाँ उसकी ऐसी थी, आम नारी इस तरह से नहीं, वो चाकू छुरी चलाती रहती है, वो ऐसा नहीं करती है. वो मेंटली इतनी स्ट्रांग होती है कि वो धीरे धीरे सब्र के साथ चीज़ों को बदलती है और दूसरों के लिए आइडियल भी बनती है. तो मेरा मानना है सिनेमा में जो महिलाओं के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये वो कैरेक्टर होते हैं. हाँ, आप बैंडिट क्वीन को अलग नहीं कर सकते, करा तो उसने भी एक काम था, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको उठानी पड़ी थी बंदूक और उसने वो ऐसा कर दिया. वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हथियार हाथ में आ जाए तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. जी, इस पे मेरा बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत थोड़ा लंबा जवाब होगा मेरा. मेरे लिए जो है, मैंने देखा समय का तो अभाव है ही नहीं हमारे पास. देखिए, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग महिला वो है जो वेल इच्ड, खूबसूरती से गढ़ा किरदार है. तो खूबसूरती की बात कर रही हूँ तो खूबसूरत फिल्म को ले लीजिए. उसमें रेखा ने कोई बंदूक नहीं उठाया, रेखा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, बदमाशी वाला काम नहीं किया, लेकिन वो किरदार ऐसा था जो आज भी आपको इतनी अच्छी तरह याद है ना. लगभग 40 साल हो गए उस किरदार को. तो ऐसे कुछ किरदार जो फिल्मों में बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबसूरती से गढ़े जाते हैं,
वो मेरे हिसाब से स्ट्रांग महिलाएं होती हैं। क्योंकि हम सब ने जो बात की, हम सब ने ये माना कि फिल्मों में महिलाओं के किरदार को या महिलाओं के लिए जगह कम होती थी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नाच गाने गाती थी, सब कुछ करती थी वो, है ना। पहले के ज़माने में हीरोइन पूछती भी थी कितने डायलॉग हैं, कितने नाच गाने हैं और कॉस्ट्यूम कैसा होगा। मैंने हेमा मालिनी का इंटरव्यू किया था, उसमें हेमा मालिनी ने खुद कहा था कि शुरुआत में वो खुद भी ये सवाल करती थी कि कितने गाने होंगे, क्या मुझे भरतनाट्यम करने का मौका मिलेगा, कि या कोई मास्टर, कमल मास्टर या कोई जो कमल मास्टर ही हुआ करते थे वो आके मुझे, नहीं सरोज जी बाद में आई थी, उनके वक्त पे कमल मास्टर थे, वो ताथैया करना हमें सिखाएंगे। और हेमा मालिनी को उस तरह का नाच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिल्मों की शर्त थी, फिल्मी नाच ऐसे होते थे कि शास्त्रीय गानों को भी ताथैया ताथैया या फिर इस तरह के गानों में आप बदल देते थे। तो एक ब्रीफ अगर मैं नज़र डालूं, क्वीन के बारे में मैंने बताया कहानी। हाँ, विद्या बालन जो है एक प्रेग्नेंट वुमन के बारे में आती है और अपने जो पति को खोज रही है क्योंकि पति की हत्या हो गई है, पति के हत्यारे की खोज में आई है और हाँ अंत में मारती है वो बहुत खूबसूरती से। NH8 में भी यही है कि नायिका अपने हाथ में जो है वो ले लेती है बिल्कुल पिस्तौल। इंग्लिश की शशि गोडबोले बिल्कुल खूबसूरत वाली है। आप याद करिए शशि को, चूँकि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात नहीं कर पाती अपने पति और अपनी बच्ची से, हाँ, इसलिए बहुत अच्छी लड्डू बनाने के बाद, बहुत अच्छी बीवी और माँ होने के बावजूद भी हमेशा एहसास कमतरी से रहती है, बिल्कुल ग्रस्त। उसको घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, तो उसे लगता है कि क्यों न मैं अपने बच्चों को और पति को इसका जवाब अंग्रेजी बोल के दूँ। वो जाती है संयोग से अपनी बहन के घर शादी में, वहाँ अंग्रेजी सीखती है और शादी के रिसेप्शन में बहुत भोलेपन, बहुत प्यारे अंदाज में वो यही सिखाती कि कैसे एक पति को पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। क्या वो कम हो गई? भाई नहीं, शशि हमारे ज़माने की औरतें हम में से एक है। तो ये है खूबसूरती से गढ़ा बेहद सुदृढ़ किरदार। मर्दानी में अगेन जो नायिका है वो अपने हाथ में उठाती है पूरा का पूरा। पिकू ले लीजिए भाई, पिकू अपने पिताजी का बेटा है और आप उसके संवाद याद करिए। पिताजी जो नहीं चाहते कि कोई लड़का उसके पास फटके और कोई आता है बंदा इंटरेस्टेड होके तो उसे कहते हैं तुम्हारी मालूम पिकू वर्जिन आई। सोचिए आप कि बाप और बेटी के बीच इतना सुंदर रिश्ता और बेटी बाप को जो है वो लेके जा रही है कोलकाता उनका घर, क्योंकि वो घर वो बिकने नहीं देना चाहती। तो वो लड़की है बहुत सुदृढ़। वो लड़की है मेरे पड़ोस की कोई लड़की जो अपने बाप की परी तो है ही है अपने पापा की, और साथ ही साथ वो सारे काम कर रही है जो शायद एक बेटा होने पे करता। और ये भी आज के ज़माने का सच है कि अब लोग जो है लड़की पैदा होने पे कतई जो है पीटते नहीं है कुछ भी। वो कहते हैं नहीं भाई हमारे यहाँ जो है लड़की आई है बहुत अच्छी बात है, पीको निकलेगी, लक्ष्मी निकलेगी पहले कहते थे, अब कहते हैं पीको निकलेगी। रांची की बात की, गली बॉय की बात की, एक और फिल्म की बात करना चाहती हूँ, लिपस्टिक अंडर द बुर्का। लिपस्टिक अंडर द बुर्का में एक उषा का किरदार है, 55 साल की महिला है, गुजराती महिला, और बाहर से दिखती है बहुत सख्त, लेकिन अंदर से जो उसको सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के इसीलिए उतरती है कि जो कोच है उसके प्रति आसक्त है। तो आप जो है उससे पहले आपने शानदार जैसी मूवी देखी, आपने और कई सारी मूवीज़ देखी जिसमें बड़ी उम्र के आदमी छोटी उम्र की लड़कियों से इश्क करते नज़र आते हैं। हाँ, आपका चीनी कम है और तमाम तरह की फिल्म है, अमिता निशब्द है। भाई ये जो है हमारी किरदार उषा बेन, वो अगर 55 साल में चाहती है कि जो कोच है वो उसे छुए, वो उसे देख के थोड़ा सा सेक्सुअली अपने अंदर कुछ पाए, कुछ करे, अच्छा लगे, तो क्या वो आज की महिला नहीं है? भाई 55 साल के महिला के अंदर डिज़ायर होते हैं। ये फिल्म नहीं बताएंगे, साहित्य नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? तो कहीं जो देख रही है जबलपुर या पटना में कोई महिला देख रही है 55 साल की, वो उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकती है कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये सारी महिलाएं बहुत सुदृढ़ हैं, बिना बदमाश हुए और बिना बंदूक उठाए। ठीक है जी, कुछ आपका, हाँ प्लीज़। मेरे हिसाब से एक फिल्म आई थी 20 साल पहले, फायर, जिसमें शबाना आज़मी और नंदिता दास
ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, वो कदम उठाती हैं इतने कंजर्वेटिव सोसाइटी, कंजर्वेटिव फैमिली के बावजूद वो एक बहुत बड़ा कदम अपनी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कदम उठाती हैं, बात करती हैं, फिर मुसीबतें भी झेलती हैं। मेरे हिसाब से एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। जी, कुछ लोग जो सवाल लेना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि कितना % परिवार है जो लड़की के होने पे खुशी मनाती है, अच्छा लगता है उसको? पहला हम यही सवाल किए आप ही के अनुसार। दूसरा, सिनेमा जो है आज का समाज को बर्बाद कर रहा है या अच्छाई की ओर लेके जा रहा है? 2 सवाल। समाज जो है, फिल्म जो है समाज को बर्बाद कर रहा है या अच्छाई की तरफ ले जा रहा है? देखिए, ये बहस मैं पता नहीं कितने सालों से सुन रही हूँ। मुझे लगता है धर्मयुग में जब थी तब हमने इस तरह की कवर स्टोरी भी निकाली थी। बिल्कुल, देखिए, साहित्य और समाज, साहित्य और सिनेमा, हाँ, समाज को कभी बर्बाद नहीं करता। वो तो आईना दिखाता है आपको। आपको जो उसमें से अच्छा लगे वो ले लीजिए, जो बुरा लगे उसे छोड़ दीजिए। तो सिनेमा आपको दिखा रहा है कि हत्या, बाकी सारी चीज़ें, पूरी कॉन्स्पिरेसी और सब, तो इसका क्या मतलब है हम असल ज़िंदगी में वो करें? लेकिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ इस तरह की खबरें दिखाई पड़ती हैं। आप वही खबरें आप न्यूज़ चैनल में और अखबारों में पढ़ते हैं। बिल्कुल, सब जो भी अपराध हो रहे हैं वो फिल्म देख के नहीं होते। माफ़ कीजिएगा, ये एक आध बार जो बहुत छुटभैये से कुछ कह देते हैं कि फिल्म देख के हमने ये सोचा कि अपहरण कैसे करेंगे या हत्या कैसे करेंगे, वो शायद 1000 में 1 या 2000 में 1 होगा, नहीं। लेकिन फिल्मों में देखिए, अंत में यही दिखाते हैं कि बुराई की जो है हीरो ही जीतता है। पुलिस बेशक लास्ट में आए, लेकिन हीरो तब तक जो है खलनायक की ऐसी की तैसी कर देता है। बिल्कुल, तो फिल्मों में आप जो रोमांच चाहते हैं ना, कि लगातार 2 घंटे जो है वो आम आदमी पिस रहा है, घुट रहा है, अन्याय का शिकार हो रहा है, बाद में आके हीरो उसे ठीक कर देता है। असल ज़िंदगी में ये भी नहीं होता। फिल्मों और असल ज़िंदगी को आप इस कदर मत जोड़िए, और ये मत करिए कि इस फिल्में देख के हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, हमारे युवाओं को बर्बाद होने के लिए फिल्म या इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपको सिर्फ एक सच दिखा रहे, एक चेहरा दिखा रहे हैं, और हर बार वो चेहरा सही हो कोई ज़रूरी भी नहीं है। जो इन्होंने बाहुबली का जिक्र किया, वो दुनिया इतनी फंतासी पूर्ण है कि वो असली दुनिया नहीं है। लेकिन आप उस कहानी की ओर जाइए ना, कि कैसे शिवगामी ने उस बच्चे को बचाया और कैसे जो है बाहुबली जो है वो विजयी हुए। बिल्कुल, हाँ, तो ये सारी बातें फिल्म आपको यही सिखाता है कि अच्छाई पे बुराई की विजय, जो हमारे देश का सिद्धांत भी है भाई, रामायण का भी लेके बिल्कुल सिद्धांत है। दूसरा आपका सवाल, लड़कियों पे मैं आती हूँ। बिल्कुल, पिछले 50 सालों में बहुत परिवर्तन आया है। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियों के शिक्षित होने का जो डाटा है वो शायद आज़ादी के वक्त 0.3% था, हाँ, और अब नए सेंसेक्स के हिसाब से 70 क्रॉस कर गया है। बहुत बड़ी बात है भाई। और दूसरे, हमारे यहाँ बाल विवाह रुक गया है, हमारे विधवा विवाह शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ जो 2 बच्चों को जन्म देने की प्रथा थी वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है। हो सकता है कुछ कस्बों, गांव, शहरों में आज भी वो लड़कियों को बोझ मानते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से लड़कियाँ शिक्षित हो रही हैं, टेक्निकल स्टडीज़ में जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, जो % पहले 1 या 2 हुआ करता था 33% हो गया है पिछले साल। तो जब सब जगह लड़की अपना पूरा का पूरा शेयर दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात इतने अंदर तक परकुलेट हो रही है कि बेटी का पैदा होना आज भी एक बोझ माना जाता है। वो परिवार, अगर मैं % के हिसाब से कहूँ, बहुत कम रह गए। हाँ, पहले अगर आप मान लीजिए 80% थे, तो अब शायद 10% रह गए हैं। तो इसलिए ये सिनेमा और साहित्य और मुझे लगता है बाकी सारी जितनी चेतना है, उनका काम है समाज को ये बताना कि दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ना लड़के आगे होते हैं ना लड़कियां, दोनों बराबर होते हैं और दोनों समाज में एक जैसा काम करते हैं। और आज की फिल्में कोशिश करती है कि यही दिखाएं। एक सवाल इकबाल जी मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। ये सवाल जो है उसको दूसरे फिल्म में ये भी लोग कहते हैं कि OTT के आने के बाद जो कुछ हमारे घरों में होता है वो सब आने लगा है, एक शॉक वैल्यू देता है और उससे एक आईबॉल्स पैदा होती हैं और जिससे कि मुनाफा भी आता होगा।
क्या सब कुछ जो हमारे घरों में होता है, हमारे समाज में होता है, उसको दिखाना ही सिनेमा है, एक रियलिस्टिक सिनेमा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये कितना घातक भी है या कितना फ़ायदेमंद भी है? देखिए, टेक्नोलॉजी जिस जिस क्षेत्र में आई समाज में, वहाँ उसने बहुत फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन ख़तरों के साथ। सिर्फ आप सिंपल कंप्यूटर ले लीजिए, अब कंप्यूटर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले के मुकाबले अब आपकी आँखें जल्दी ख़राब होती हैं। ये मजबूरी है टेक्नोलॉजी की। कंप्यूटर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बचत करते हैं, उसकी स्क्रीन मोटी करते हैं, चश्मे में थोड़ा सा हरे रंग का और उस तरह के ग्लास, लेकिन ख़तरा उसमें निहित है, छुपा हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो OTT एक ऐसा मतलब माध्यम था, उसे रोका नहीं जा सकता था। कोई नहीं रोक सकता कि OTT हमारे यहाँ ना दिखाए जाएं, और कम से कम भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में तो ये सोचा ही नहीं जा सकता था। ये बहस चल रही है और चलना भी चाहिए किसी जागरूक समाज में कि OTT का जो कंटेंट है क्या ठीक है, कितना ठीक है। अच्छा, अगर ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उस पर कैसे हम कुछ रोक लगाएं, या सेल्फ सेंसर वाला कुछ मामला, इसके ऊपर बहसें जारी हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये बहसें जब किसी नतीजे पे पहुँचें उससे पहले ही आप OTT पे बैन कर दें। ये कोई इसका सल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। OTT के मुद्दे पे जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उसके अंदर गालियों की भरमार हो रही है, और घर परिवार में क्या पड़ोस में भी लगभग इस तरह का माहौल बहुत जगह नहीं होता है जैसा OTT में दिखाया जा रहा है। हाँ, दिखाया जा रहा है, लेकिन अब आप उसे मजबूरी शब्द का नाम दे लें, या आपकी मजबूरी है उसको देखना या ना देखना। ना देखने में ये होता है कि अगर आप बहुत स्ट्रांगली मान रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग जो अभी फैसला नहीं ले पाया है क्या गलत है और गलत है तो कितना गलत है, वो तो तजुर्बे करेगा, हर तरह का कंटेंट वो देखेगा। नौजवानी में एक ये खासियत होती है कि जिस चीज़ से मना करिएगा वो करेंगे ज़रूर। हमने भी करा है अपनी नौजवानी में। तो OTT कंटेंट वाकई एक बहस का मुद्दा है कि OTT के कंटेंट पर क्या रोक लगे, कैसे लगे। और मुझे लग रहा है कि वही टेक्नोलॉजी वाली जो बात है, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उस पर कोई भी कुछ भी बनाकर पेश कर रहा है। फिर भी आप देखिए उसके ऊपर टोटल कंटेंट अगर आप देखें तो वो इन गाली गलौज से कहीं ज़्यादा बेहतर कंटेंट है, बहुत ज़्यादा प्रतिशत के अंदर। मैं OTT के इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि OTT को आपने कहा OTT से ज़्यादा खतरनाक मनोरंजन का एक दूसरा माध्यम बन गया है, रील्स जितना चरस बो रहा है आज की तारीख में मनोरंजन के नाम पे, उसके खतरों के बारे में अगर हम बात करें तो हमें एक अलग सेशन करना पड़ेगा। तो ये सब मेरे ख्याल से शायद एक ही बुके में है। जी आदरणीय रश्मि मैम से एक सवाल है। हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सिनेमा का चरित्र बदल रहा है, महिलाओं के लिए यहाँ समावेशीकरण हो गया और हम संतुलन साधने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये इस मिथक को तोड़ पाए हैं कि क्या कुछ एक पुरुष निर्देशकों को छोड़ के या कुछ एक महिला निर्देशकों जैसे मीरा नायर या फिर हम मेघना गुलजार की बात को छोड़ के अतिरिक्त महिलाओं के ऊपर एकल किरदार वाले फिल्म बनाए जा रहे हैं, और यदि नहीं बनाए जा रहे हैं क्या उन पर रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है, उन पे फिल्म बनाकर जोखिम उठाने का खतरा उठाया जा रहा है? अगर नहीं उठाया जा रहा है तो हम ये कैसे मान के चलें कि महिलाओं के लिए भारतीय फिल्में सशक्त हो गई हैं? आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि मेरे ख्याल से जयंती जी इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल पाएंगी, लेकिन मेरे समझ से हर समय में एक बीच में ऐसा सिनेमा आता रहा है जो वुमेन डोमिनेंट है। पहले बहुत शुरू में भी विमेन स्टंट विमेन, एक बहुत पुरानी पिक्चर थी जिसमें एक लेडी थी, मुझे नाम नहीं याद, वो शायद फॉरेनर थी, हिंदी मूवीज़ में आती थी और स्टंट्स करती थी। तो बीच में आप देखिए, जैसे मैंने अभी फायर की बात करी 20 साल पहले, राजी करंट कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से आजकल बहुत थिंकिंग फिल्म मेकर्स हैं। मैं देखती हूँ जैसे श्याम बाबू तो हैं ही बहुत थिंकिंग, उन्होंने वो ट्रिलॉजी बनाए
सरदारी बेगम की, फिर सत्यजीत रे की फिल्म्स बनी। अभी देखिए जैसे मुझे लगता है कि जो करंट लोग हैं उसमें जैसे जोया अख्तर है, शी इज़ अ वेरी थिंकिंग पर्सन, शी मे बी चूजिंग डिफरेंट थीम्स एंड स्टोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। इम्तियाज़ अली खान जो है उनमें मैं एक बहुत अच्छा एक वो देखती हूँ जो मेरे हिसाब से कि वो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को भी ज़रूर इंक्लूड करते हैं अपनी हर फिल्म में। कोई फोक आर्ट फॉर्म, जैसे एक वो फिल्म में कश्मीर के म्यूज़िक को करते हैं, या आप देखें कवाली को करते हैं, इट्स प्योर फॉर्म। तो मुझे लगता है हर समय में थिंकिंग फिल्म मेकर्स रहे थे और हैं, और मुझे लगता है आगे भी बढ़ते हैं। आजकल की जो कमिंग जनरेशन है, दे वेरी ब्राइट, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे वेरी ब्राइट। तो मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर, जैसे मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करती हूँ, जब हमने शुरू किया जो स्पिक में के जिस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, तो कहीं 1-2 कॉन्सर्ट करना मुश्किल होता था, फिर बहुत हुए तो 300 कॉन्सर्ट कर लिए। आज की डेट में हम 7,500 कॉन्सर्ट करते हैं एक साल में, और उसमें स्कूल्स और उनकी मैनेजमेंट्स आगे आती हैं। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कि शास्त्रीय गायन और वादक का क्या फ्यूचर, मैं बोलती बहुत फ्यूचर ब्राइट है। आजकल की यंग जनरेशन उसको बहुत हिप मानते हैं, तो वो उससे जुड़ना चाहते हैं। तो सिमिलरली आई थिंक द सिनेमा हैज़ ग्रेट फ्यूचर, देयर विल बी गुड सिनेमा, इट हैज़ बीन मेड इन द पास्ट, इट इज़ बीइंग मेड करंटली, एंड आई एम श्योर देयर विल बी गुड सिनेमा इन कमिंग टाइम्स। विमेन को अब वो विमेन जो है अब वो डिपेंडेंट नहीं रह गई हैं सिर्फ कि उनकी बात, वो खुद से भी अपनी बात रखती हैं आगे। खाली सिनेमा एक मीडियम नहीं है जिससे वो अपनी एम्पावरमेंट उनकी हो सके। सो मेरा मानना ये है। अच्छा देखिए, आपकी बात का मैं एक फ़िल्म के पर्सपेक्टिव से जवाब देती हूँ। हम जब जाते हैं जर्नलिस्ट और बात करते हैं प्रोड्यूसर, तो कहते हैं कि फ़िल्म बनाना बहुत महंगा सौदा है, फ़िल्म बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि पैसे वापस आएंगे। इसीलिए महिला प्रधान फिल्म जो एक महिला के कंधे पे चले, बहुत पहले के आसिफ ने 50 के दशक में ये हिम्मत उठा ली कि उन्होंने बना दिया मदर इंडिया, और मदर इंडिया बहुत चली भी। लेकिन जब वो कहानी बना रहे थे, हाँ महबूब बिल्कुल, के आसिफ की फिल्में भी महिला प्रधान हुई हैं, बिल्कुल है ना। तो फिल्म बनाने के पीछे ये एक बहुत बड़ा, आप कहें कि एक बहुत बड़ा परिदृश्य चलता है कि एक बहुत मज़ेदार आंकड़ा मैं बता दूं कि हर दिन लगभग 1000 स्क्रिप्ट पे काम होता है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट जो है वो फाइनल होती है। और इस तरह के 1000 स्क्रिप्ट जो बनते हैं, वो 1000 स्क्रिप्ट में से एक फिल्म जो है वो फ्लोर तक पहुंचती है। और इस तरह के जो 1000 स्क्रिप्ट जो फ्लोर पर पहुंचते हैं, उसमें से सिर्फ एक फिल्म बनती है। और ऐसे 1000 फिल्में जो बनती हैं, उसमें से शायद 2 फिल्में रिलीज़ होती हैं, बाकी फिल्में आधे में बंद हो जाती हैं, या वो डब्बा बंद हो जाती हैं, या पैसे नहीं होते, या जो भी वजह हो। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने आ रहे हैं, जो भी फिनांसर पैसे लगा रहे हैं, वो ये देखते हैं कि अगर मैं लगा रहा हूँ 5 करोड़ 6 करोड़, तो क्या मुझे उसकी वापसी मिलेगी, उतने पैसे मिलेंगे? तो उनको उम्मीद नज़र नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ फिल्म की बात अगर हम कहें तो महिला प्रधान फिल्में बहुत कम हुई हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत रिस्की बिजनेस है, गिने चुने लोगों ने बनाया है। लेकिन सुखद बात यही है कि ये जब हम वेब सीरीज़ की या OTT की बात करें, तो वहाँ इस तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ जिसे चाहे वो देखते हैं। इसलिए वहाँ देखिए, वहाँ महिला प्रधान चीज़ फिल्म में तरह तरह के शेड्स आपको OTT पे नज़र आएंगे। तो जहाँ खतरा कम है, वहाँ लोग आराम से रिस्क उठा सकते हैं। तो ये भी इन्होंने सही कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है OTT का ये जो है असर फिल्मों पे पड़े, पर मुझे ये अभी बहुत पास दिख नहीं रहा। रीलम जी, आप एक सवाल आपसे है मेरा कि ये जो OTT पर बहस हो रही है, हम चूँकि आपसे पर्टिकुलरली डांस के इस एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव, चेंजेस या OTT पे उसके फॉर्मेशन को लेकर किस तरह का आपका नज़रिया है? बैकग्राउंड तो जयंती जी ने बता दिया कि इट्स जस्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा और मैं बोलूं कि अभी वही चीज़ है कि कोई अपने आप को अगर आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करना चाहेगा, तो वो कहीं भी बैठ के किसी भी छोटे से बजट से वो अपलोड कर सकता है, एंड वो यू कैन गो डायरेक्टली टू योर व्यूअर्स. So you don't need a big organizational setup or somebody to be your godfather or whatever it is. आप अपने आर्ट को सीधा व्यूअर के तरफ ले जा सकते हैं.
और बाकी तो इसमें और मुझे और कोई ज्ञान नहीं एक जो है। कहा जाता था कि एक ज़माने में 50-60s के ज़माने में कि डांस बड़े एक ब्यूटीफुल फॉर्म में प्रेजेंट होता था, लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में और आज के फिल्मों में उस तरह का चीज़ देखने को तो मिलती नहीं है? मैं ये कह सकती हूँ कि एक चीज़ जो थोड़ा सा बदल गया है कि आप बहुत अच्छे डांस फॉर्म्स जैसे कि बेली डांसिंग एक उदाहरण के तौर पे, वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल डांस फॉर्म है जो कि फर्टिलिटी का एक वो डांस है जो एंशिएंट इजिप्ट में वो एक महिला दूसरे महिला के सामने ही डांस करती थी, क्योंकि बेली डांसिंग का जो मूवमेंट है वो आपका नाभि का वो मतलब नाभि के चक्रों के नीचे का चक्रों को वो स्ट्रॉन्ग करता है, उसको एक शक्ति ऊर्जा जो कुंडलिनी हमारे आध्यात्मिक सिस्टम में योगिक सिस्टम में जो कुंडलिनी के बारे में हमको बताया गया है उसको जागृत करती है। अब आप बेली डांसिंग को ले लीजिए और आप चले जाइए उसको सेटिंग कर लीजिए एक बार में कि बार में बेली डांसिंग हो रहा है और ये सारे जो पुरुष हैं वो उसको बहुत ही दूसरे तरीके से, तो आपने डांस तो बढ़िया सा ले लिया पर आपने सेटिंग गलत कर लिया। जी कुछ सवाल हैं? अच्छा एक सवाल, अच्छा हाँ ठीक। नमस्कार, मेरा एक सवाल है जयंती मैम से। नमस्कार मैम, कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि सिनेमा जो है सोसाइटी का एक आईना है, तो जब हम साउथ का सिनेमा देखते हैं या मराठी सिनेमा देखते हैं या वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं तो वो आईना में कुछ कम ज़्यादा कैसे हो जाता है, या हमारे पास कंटेंट की कमी है क्योंकि वहाँ जो कंटेंट होता है बिना क्राइम सेक्स और वायलेंट होने के बिना ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें दिखा देता है सिनेमा के थ्रू, जो हिंदी सिनेमा में दिखता नहीं है। मतलब कंटेंट में कमी है क्या हिंदी सिनेमा के? साउथ की फिल्में अगर मैं कहूँ तो मलयालम फिल्में शुरू से अगर आप देखें, अडूर गोपालकृष्णन है ना, एली पत्तायम के टाइम से बहुत सीरियस और बहुत मीनिंगफुल फिल्में बनी हैं। तमिल फिल्में लेकिन बॉलीवुड की तरह बिल्कुल उछल कूद और फार्मूला फिल्में बहुत बनी है तमिल, और तेलुगु तो ज़्यादा बिल्कुल। अब आप हिंदी में आ जाइए तो हिंदी में अगर हम पिछले कुछ सालों पहले तक तो देखें तो हम लीड कर रहे थे हिंदी फिल्में। हिंदी फिल्मों का जो मार्केट था वो हम 2000 करोड़ सालाना कमाते थे, और तेलुगु फिल्में शायद 700 करोड़ और तमिल फिल्में 500 करोड़ कमाया करती थी। लेकिन पेंडेमिक के बाद के दौरान वो हमसे बहुत आगे निकल गए। इसमें कुछ 3-4-5 फिल्मों का योगदान रहा, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ उसके भरोसे हम ये नहीं कह सकते कि कंटेंट में वो हमसे आगे निकल गए। हालांकि पिछले साल जो भी फिल्म आई, जवान आई, वो सारी की सारी तमिल फिल्म या तेलुगु फिल्म के कंटेंट के अनुसार ही बनी थी और खूब चली भी। मेरा मानना है कि हिंदी में जो भी अभी बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो एक तरह से रिस्क उठाते थक गए, क्योंकि बड़े जितने बैनर्स थे लगातार उनकी फिल्में पिट गई। जैसे यशराज बैनर ले लीजिए, साजिद नाडियाडवाल लीजिए, 18-19 के दौरान और 20 के दौरान भी उनकी फिल्में लगातार पिट गई, और 1,000 करोड़ के नुकसान के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई नया सब्जेक्ट उठा ले। तो उनको लग रहा है कि अगर पुष्पा चल गई या उस तरह की कोई दूसरी फिल्म चल गई तो वो उसको हमारे यहाँ बना लें। लेकिन ये भी प्रयोग मेरा मानना है कि बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। अब आप इस साल मतलब पिछले साल देख लीजिए, पिछले साल की जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें एकाध फिल्मों को छोड़ दें आप तो हिंदी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस कमा लिया है भाई। जी शेफाली जी नमस्कार, मैं शेफाली हूँ और मेरा सवाल ये है कि ये जो सो कॉल्ड विमेन ओरिएंटेड सिनेमा होता है जिस पे सील ठप्पा पूरा लगा होता है कि ये महिला प्रधान है, उसमें वो प्रवचन मोड पे क्यों आ जाता है? और दूसरी बात ये कि क्या कहीं ऐसा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मैं यहाँ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, टोटल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या अपना कंपास आज तक सेट ही कर रही है कि वो किस महिला से बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं मालूम, हमने बहुत सारी फिल्मों के नाम लेते हैं लेकिन मैं बहुत रिसेंट में बहुत पीछे जा ही नहीं रही। जयंती जी, एक खास तौर पर आपसे पूछूंगी, मैंने पिछले दिनों एक फ़िल्म देखी, मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मैंने देखी थी मैरी क्रिसमस। हाँ, और मैंने देखी 3 of Us। वो महिला प्रधान नहीं होके भी बहुत कुछ कहती हैं, बिना प्रवचन के वो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। और फिर मैंने देखी लापता लेडीज़। ठीक है,
इन तीनों में बहुत अंतर है, सेटिंग का अंतर है, शायद बजट का भी अंतर है, लेकिन ये प्रवचन मोड पे नहीं जाती हैं। लेकिन इन तीनों को देख के मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या कंपास सेट नहीं हो पा रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। एक सवाल और, बाहुबली का जिक्र बार बार हो रहा है, तो बाहुबली और जो हम तमिल फिल्म्स और तेलुगु फिल्म्स को कॉपी कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मैसेज दे रहे हैं कि अच्छी फिल्म चलती है। हाँ, वो समय से उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो किस समय में बनाई गई और किस समय की कहानी कही जा रही है। अगर वहाँ महिला पात्र स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रही है क्योंकि वो अच्छी लिखी गई, अच्छी कही गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया कि फिल्म अगर अच्छी होगी तो ज़रूर चलेगी। अगर फिल्म जो है थिएटर में नहीं चली किसी वजह से, तो वो जो है OTT पे बहुत अच्छी चलती है। बिल्कुल। तो ये जो 3 फिल्मों का आपने जिक्र किया जिसमें प्रवचन बिल्कुल नहीं है, 3 ऑफ अस तो बहुत ही स्वीट, तीनों ही फिल्म बहुत अच्छी है। लापता लेडीज़ भी बहुत अच्छी है, और ये जो मैरी क्रिसमस है वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी महिला का किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सक्षम है। बिल्कुल। और जो हम नाच गाने की बात कर रहे थे, मुझे तो वो 5 मिनट का जो वो नाचती है दिल खोल के विजय सेतुपति के साथ, मुझे लगा कि वो तो बहुत ही खूबसूरत नाच है, वो महिला के अंदर से एक जो उत्सव निकलता है उसका नाच है। तो देखिए, प्रवचन मोड में अक्सर लेखक और निर्देशक इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो चूक रहे हैं, उनको लगता है कि शायद दर्शक उन्हें समझ न पाए, तो वो जो है वो प्रवचन मोड में जाके अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। लेकिन ये भी बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि दर्शकों को जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कमतर समझता है वो अक्सर असफल होता है। आज के दर्शक जो है बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और उनके पास चॉइस है भाई, थिएटर में जाके 600-700 रुपये खर्च ना करके OTT पे फिल्म देखने का। तो मुझे लगता है कि प्रवचन वाला तो बंद हो जाएगा, क्योंकि OTT पे बिल्कुल नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है ये करने की। तो मेरे ख्याल से यही है आपका जवाब। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। हर तरह के आप महिलाओं की शेड्स भी तो देखिए कितने हैं। हम एक जैसे एक रंग के कहाँ हैं, हम खुद रंग बिरंगे हैं, हमारे अंदर इतनी भावनाएं हैं अगर, तो फिर वो तो कंपास भी तो चलेगा ही ना। 7 रंग का होगा और 365 दिन का होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कंपास को लेके कोई दिक्कत है। एक सवाल इकबाल जी आपसे है मेरा सवाल, कि एक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है इसमें थोड़ा एक बाइसनेस एक मर्द की आए, मेल की आए। ये जो वैलिडेशन आता है ना कि वुमेन सिनेमा बहुत अच्छा था, उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, ये प्रीडोमिनेंटली मेल डायरेक्टर एक मेल सोसाइटी देती है बहुत अच्छा करेक्टर। देखिए, उसने वर्जनाओं को तोड़ा, 50s 60s में भी तोड़ा, 70s 80s में भी तोड़ा, और आज भी कहते हैं। लेकिन ये वैलिडेशन के लिए भी तो हम ही दे रहे हैं, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दे रही है। तो क्या जितनी वुमेन सेंट्रिक सिनेमा है, वुमेन्स के स्ट्रॉन्ग करेक्टर हैं, वो एक टेंजिबल बदलाव ला पाती है, नहीं ला पाती हैं, या खाली वो पर्दे पर आई बहुत अच्छा डायलॉग था, उन किरदारों को हम रील में प्ले करें या कहीं और यूज़ करें, याद रखें, लेकिन कोई बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है कि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में जो करेगा वो मेल ही करेगा। तो अभी भी महिलाओं के जो स्ट्रॉन्ग किरदार आना शुरू करे, वो मर्दों नहीं बनाना शुरू करे। ख़ास बात ये हो गई कि अब औरतें कह रही हैं हमें भी बनाने दो, और वो भी बनाने लगी हैं। ये एक ख़ास बात है। ऐसा नहीं है कि मर्द औरत के दुश्मन थे, वो मदर इंडिया जैसी फिल्म वो नहीं लाते अगर उन्हें, या दीवार में वो डायलॉग जो मेरे पास माँ है, वो सलीम जावेद नहीं लिखते अगर उनको महिलाओं से हमदर्दी या उनकी सही हैसियत को पहचानवाने की ख्वाहिश दिल में ना होती। तो मेल ने तो बदलाव, उनका क्रिएटिव वो भी तो हो सकता है कि एक ज़माने में कभी कुछ छूटा तो हमने लिख दिया, लेकिन मेजॉरिटी में तो सलीम जावेद ने भी वुमेन एंग्री यंग मैन लिखा, उन्होंने एंग्री यंग वुमेन तो नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा, इसलिए वो जयंती जी जवाब पहले दे चुकी हैं। रिस्क फैक्टर, जो सिनेमा बनाने वाले होते हैं वहाँ पैसा इतना लग रहा होता है कि वो रिस्क फैक्टर। अब मैं 3 फिल्मों की मिसाल आपको दे दूँ कि उनको बनाने वालों को मतलब हिम्मत करी होगी। गॉड मदर, शबाना आज़मी की। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वुमेन सेंट्रिक सिनेमा लिखते, एंग्री यंग वुमेन लिखते, तो जो महिला 50% की आबादी है वो देखने ना जाती? नहीं, बिल्कुल जाती, लेकिन महिलाओं के पास आज़ाद होकर फिल्म देखने के अवसर कितने थे ये आप रिकॉल कर लीजिए। हाँ, पुरुष ही ले जाता था, पैसे भी अगर नहीं जा पा रहा है तो पैसे भी पुरुष ही देता था ना, तो वहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी। गॉड मदर बनी, वो एक यानी बुरी महिला की कहानी है, वो भाई डॉन है।
हसीना पारकर, वो भी डॉन थी मुंबई की, उसके ऊपर गंगूबाई कठियावाड़, ये फिल्में जो बनी तो औरत का एक ये वाला पहलू भी समाज में है और वो डोमिनेट करता है, ये सिनेमा वाले दिखाना चाह रहे थे। अब पुरुष थे, इत्तेफाक की बात है कि तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल अब मेरा सवाल है कि ये आपसे है रश्मि जी, अब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, गंगो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, क्या वुमेन्स वर्जनाएँ तोड़ रही हैं, उनकी अपने डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ बढ़िया है और उनकी पर्कुलेशन सोसाइटी में हो रही है, या अभी भी आपको लगता है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है वेल इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेंट्रिक सिनेमा? अभी तो मेरे हिसाब से बिगनिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है सिनेमा में, और मुझे लगता है कि आज की मैं हिंदुस्तानी औरत के बारे में बोलती हूँ, बहुत जागरूक है, एंड टू सम एक्सटेंट सोशल मीडिया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अनफॉर्चुनेटली प्रिंट मीडिया और बुक्स पढ़ने का वो कम हो रहा है, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी विमेन इन रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री आर बिकमिंग। अभी एक कुछ दिन पहले मेरे घर में एक संस्था के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, डिशुम करके वो संस्था है, डिशुम इज़ संथाली वर्ड, और उसमें 90% औरतें थी और वो इतनी अवेयर थी, और वो बहुत रूरल पार्ट्स ऑफ झारखंड से थी, कोई बिहार से थी, कोई वेस्ट बंगाल के ऐसी जगह से थी जहाँ पे आप सिर्फ कश्ती से जा सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी अवेयरनेस थी। कुछ उसमें कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उनके पास वो सब दुनिया की खबरें पहुंच रही हैं, और ये सब सिनेमा देखती। शाहरुख खान की सब फ़ैन थी, तो वो मतलब वो जो डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान जो किताब लिखी गई है, वो विमेन के एक्सपीरियंसेस से लिखी गई। सो मेरे हिसाब से कि अभी आगे और विमेन की थोड़ी आप पावर मेरे ख्याल से और देखेंगे आगे आते आते, मेरे हिसाब से। आप कैसे देखती हैं लीला जी, क्यों आने वाले समय में इस ट्रेजेक्ट्री को आगे, हमने OTT की बात करी और जो कि कुछ चैलेंजेस की भी बात करी, अगर हम डांस फॉर्म की इसी पूरी यात्रा की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन को कैसे आप देखते हैं? आई थिंक ये सिलसिला अनंत है, सो चलता रहेगा, एंड देर ऑलवेज बी दोज पीपल हु विल से कि आप कुछ भी करो, इट वेरी हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, and there always be people who will try to reform ki, and my interest is in reformation. तो हम लोग जो हैं, हम ये मानते हैं कि जैसे कि समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा, और जो वायलेंस है वो एक बेसिकली एक एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है, वो एक इंटरनल गुस्सा हमारे अंदर है जो कि बढ़ता जा रहा है। और मतलब बहुत सारे ये जो आर्ट फॉर्म्स, हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर था, वो ऐसे बनाया गया था योगियों के द्वारा, जो बहुत ऋषि पुरुष थे अलग अलग कल्चर से, इंडिया का हो कहीं से भी हो, कि हमारा मन को वो शांत करता था। तो अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो हम ये जान नहीं पा रहे हैं, पर इसका लाइटिंग, इसका आर्किटेक्चर, इसके कलर्स सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो हम चाहे सिनेमा देखें, कोई डांस, और उसके अंदर कोई डांस देखें, तो रिसर्च कहता है कि ऐसे ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, इस तरीके के जो स्टोरीज़ हैं, ये मतलब आपकी एग्रेशन को कम करता है, और बच्चों के ऊपर भी प्रभाव देखे हैं कि इस तरीके का डांस अगर बच्चों को सिखाते हैं तो वो 15-20 दिन में उनका एग्रेशन कम हो जाता है। तो इस तरीके का बहुत रिसर्च है, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को, नहीं तो सोसाइटी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ, क्योंकि बहुत ईजी होता है, किसी ने थप्पड़ मारा, आपने थप्पड़ मारा, आप करो जो आप चाहते हो, आप करो जो चाहते हो, आप करो जो चाहते हो, वो बहुत आसान है, पर संयम से कोई चीज़ करना मुश्किल होता है। उसके लिए हमको अपने आप को बहुत हमारे ऊपर काम करना पड़ता है। और आर्ट्स जो है, क्योंकि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं और डांस के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी एक आप सामाजिक, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप हट नहीं सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आप कोई भी काम अपना करते हैं उसको धर्म के हिसाब से निभाना ही पड़ता है, और आपके क्रिया से किसी और के ऊपर या समाज के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव होता है,
उसके ऊपर विचार सोच विचार करना चाहिए। और इस वजह से ये जो आज आपने कार्यक्रम किया है और आपने जो मुझे बुलाया है इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पीछे से पराक्रम शेखावत। या नमस्कार, मैं पराक्रम हूँ और मेरा सवाल जयंती जी आपसे है। सबसे पहले तो IGNC मीडिया सेंटर का अभिनंदन, बहुत सुंदर विमर्श हमको सुनने को मिला है यहाँ पर। और सवाल ये है कि भारतीय सिनेमा ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं महिलाओं पर आधारित जो हैं, लेकिन क्या ये सभी फिल्में पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को बदल पाई हैं आपकी नज़र में? अच्छा, ठीक। सिर्फ ये कहूँगी नहीं। देखिए, फिल्में मिलके जितनी भी फिल्में बन जाएं वो एक झटके में पैट्रियार्की या पुरुष प्रधान समाज को बदल पाएंगी? नहीं बदल पाएंगी। ये बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे आपको समाज पे चोट करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं अगर ये बात कहूँ कि मैं तो जहाँ से आती हूँ वो महिला प्रधान समाज है, मैं दक्षिण भारत में जहाँ से आ रही हूँ, तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वहाँ भी महिला प्रधान समाज अब पुरुष प्रधान हो गया है। जब देश पुरुष प्रधान है तो क्यों नहीं। तो वहाँ भी देख रही हूँ कि कई सारी जो गलत बातें हैं, जैसे दहेज वहेज, हमारे यहाँ तो हमें तो मिलता था नानी की तरफ से, अब वो सब भी वहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो एक तो ये मान के चलिए कि जो भी बुरी बातें होती है ना, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अच्छाई को फैलने में बहुत समय लगता है। तो फिल्म भी ये काम बखूबी कर रहा है। धीरे 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 वो लड़कियों को सामने ला रहा है, वो समाज को ये बता रहा है कि लड़कियां ये काम भी कर सकती हैं। वो सिर्फ एक देवी नहीं, एक माँ नहीं, एक अच्छी बहन और भाभी नहीं, हाँ, वो दिन भर और रात को सोते समय भी साड़ी पहन के नहीं रहेगी, हर वक्त खाना पकाती नहीं रहेगी, हर वक्त तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करती नहीं रहेगी। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अंदर एक आत्मा है, उसकी अपना एक उसकी ख्वाहिशें हैं। तो अब ये ख्वाहिश पूरा करने का काम एक औरत का जितना अपना है उतना ही उसके साथ ही पुरुषों का भी है और समाज का भी है। तो समाज को बदलने में अभी वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ शुरुआत हो चुकी है और तेज़ी से हम बदल रहे हैं तो ये भी सच है। क्योंकि आज के आप देखिए ना फिल्मों में जितना तेज़ी से हम दिखा रहे हैं, पहले हम लड़का लड़की को मिलते हुए, उनको साथ में जो है संबंध बनाते हुए हम 3, 4, 5 रील के बाद दिखाते थे। इंटरवल तक वो बेचारे फूल हिलाते हुए आपस में मिलते थे बिल्कुल। अब देखिए, पहला सीन आया, दोनों ने एक गाना गाया और दोनों जो है एक घर पे एक साथ रहने लगे। तो ये भी तो समाज का एक चरित्र है जो आप महानगरों में देख रहे हैं। जो हमारे आसपास की लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो इससे टैबू मानते ही नहीं है जिसे हमारी पीढ़ी ने माना था। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि आज जो भी फिल्मकार है जो लिख रहा है वो यही सब समाज देख के तो लिख रहा है अपने आसपास से। भाई अनुराग कश्यप ने चूंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत एक कालापन झेला हुआ है, बहुत एक डार्क उसमें घुसे हुए हैं, तो उनकी फिल्मों में भी वही नज़र आता है। चाहे देवडी हो या वासेपुर हो या जो अभी उन्होंने बनाई थी डीजे वाला, जो इतना कन्फ्यूजन था। तो भाई फिल्मकार जो है वो जितना सुलझे हुए, जितना खुले दिल के होंगे, फिल्म में वो वही लाएंगे अपने लेखकों के साथ। तो ये तो मान के चलिए कि ये कोई एक दिन में परिवर्तन होना संभव नहीं है, होगा, लेकिन निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को यहाँ पर विराम देने के लिए, क्योंकि सवाल तो और भी आ सकते हैं, लेकिन आप तीनों का और चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। वुमेन इन सिनेमा किस पड़ाव पर है, ये हमने कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करी, पर यकीन मानिए ये चर्चा कुछ चाय के बाद अगर दोबारा शुरू करें तो फिर भी चल सकती है, लेकिन अपनी इस यात्रा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।